please turn off your mics. Guys, please turn off your mics if you are not speaking. Sir, if possible, then mute all from the participant list. Okay, let me do it. Okay. A very warm welcome to all of you. I hope सबका दशहरा बहुत अच्छे से बीता होगा एंड अगेन ये जो थोड़ा सा अप डाउन भी हुआ होगा कुछ स्टडीज में, it might have been felt either everything was going on track, suddenly कुछ फेस्टिवल्स आ गए एंड उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लो हो गई एंड ऑल. So yes, it happens, nothing much to be worried about it. So take it lightly, need not to worry about these things. Your productivity, your efficiency will be back at your disposal. Okay, as soon as possible. So in this session, we will be basically dealing with the three kinds of students, as I have three kinds of not students but groups, I will say, as I've already mentioned in the channel, that it's a more or less post mains strategy session. What should be our strategy from now onwards, and how SOMP as a team, as a family, can help you in achieving the same. Okay, so yeah, Sahil sir, making you host again. So session, okay, very good. Sahil sir, are you here? Yes, sir, I'm here. Okay. Sahil sir will be taking the session forward. I will be here as well. So if anyone of you are writing in the chat box or something, you will be reverted. And in the end of the session, we will try to have some questions. Apart from that, any course related query or something, and how these courses will help you guys, or what kind of course you should opt, what kind of strategy you should opt. This all kind of doubts will be taken care in the session only. Fine. Sahil sir, now it's up to you. Okay, sir. Thank you. See, I hope you are able to see the whiteboard. Yes, Sahil sir, perfectly fine. Okay. Okay. So, rather, I would say I'll say I would be dealing in 4 categories, right? See, one would be people who have. I'm writing it so that you can process the things, right? Otherwise, I can just say it and the session can be done easily. People who haven't given prelims till now, right? Not even one prelims. So they would be the freshers, right? They might be preparing for 1 year, 2 year, but they haven't appeared in prelims till now, right? So 23 would be their first attempt, and they are more or less preparing in a very integrated manner, right? So they would be doing mains now, and they would be slowly graduating into prelims, right? Then the second one would be they have appeared for 22 prelims, right? And in this, there would be then again 2 categories. One who could not qualify, right? Another who qualified, right? एंड अगेन यहाँ पर भी 2 कैटेगरीज होंगी, ठीक है? एक जिनका मेंस निकल जाता है, एक जिनका मेंस नहीं निकलता है, ठीक है? तो फर्स्ट कैटेगरी वाले, सो दिस वुड बी, ये वाले वो लोग हैं
जो अगर सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं तो मोर और लेस दे वुड बी ऑन द राइट ट्रैक, राइट? अगर कोई उनको पीछे से गाइड कर रहा है या दे हैव सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस ना, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा ब्रेक नहीं आया कभी भी, राइट? व्हाट वुड बी फॉर द अदर्स, उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं आया, ठीक है? तो मोर और लेस वो अभी आंसर राइटिंग कर रहे होंगे एंड स्लोली मे बी नवंबर दिसंबर व्हेनेवर दे फील सो they would be going into prelims, right? Then the second category I would want to take next is जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करा था एंड जिन्होंने मेंस लिखा, राइट? अब ये वो लोग हैं जिन्होंने मेंस लिखा है अभी अभी, एंड मेंस अभी खत्म हुआ है 10-15 दिन पहले। सो अभी वो थोड़े रेस्ट मोड में होते हैं एंड डिजर्व्ड होता है, राइट, वो रेस्ट। तो अभी वो धीरे 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 वापस आएंगे 5-10 दिनों में, ठीक है? एंड उसमें भी दो टाइप के लोग हो सकते हैं कि अभी के लिए, कि एक तो जो कॉन्फिडेंट है कि हमारा अच्छा गया, या दे फील दैट दे पेपर्स वेंट वेल एंड मे बी उनकी मेंस पे कमांड अच्छी है, तो मे बी वो थोड़ा और रेस्ट करेंगे एंड देन gradually they will take it on, right? Then again another would be जिनको पता लग गया है अभी पेपर देते ही कि इस साल नहीं होने वाला है, ठीक है? 90% दे आर श्योर इस साल नहीं होने वाला है, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दे वुड बी अगेन बैक इनटू मेंस, राइट? क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं, राइट? बाय राइटिंग मेंस दे हैव आइडेंटिफाइड, राइट, दैट कि इतने से तो नहीं होगा, जो उन्होंने तैयारी की है उससे नहीं होगा। हो सकता है उनके कंटेंट में कमी रह गई हो सकता है उनके रिविजन में, कंसोलिडेशन में कमी रह गई हो, या उन्होंने कभी आंसर राइटिंग की ना हो या ठीक से ना की हो, राइट? सो इफ आई वर टू से, इफ दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, this is the first category, this is the second category, right? And this is the third category. I would say the first category, if it had been guided well in the past, right? And if it is a sincere student, he or she is a sincere student now, he would be more or less on the right track, right? राइट ट्रैक से मेरा मतलब है कि वो अभी मेंस की तैयारी कर रहा होगा, राइट? सिर्फ प्रीलिम्स की नहीं कर रहा होगा, ठीक है? ये वाली कैटेगरी, अगर तो वो ऐसा स्टूडेंट है जिसका मेंस कंफर्टेबली निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा रिलैक्स होगा, फिर वो मेंस में आएगा, राइट? क्योंकि जिसका निकल रहा है उसको आइडिया है कि मुझे अब मेंस ही करना है फिर से, ठीक है? चाहे रैंक इंप्रूवमेंट के लिए या फिर इंटरव्यू में जाना है, वॉट एवर बी द केस, राइट? वो ऐसा स्टूडेंट जिसको लग रहा है मेरा नहीं निकल रहा, उसको तो पक्का पता है कि मुझे मेंस ही करना है, राइट? He would be the most intense person to start with the mains now, right? चाहे वो 10 दिन में करे, चाहे स्टार्ट है 15 दिन में करे, मे बी another माइल टाइमलाइन could be कि दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे, इवन दैट इज फाइन फॉर दैट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, राइट? जो सबसे ज्यादा फंसते हैं ना, वो ये सेकंड कैटेगरी वाले, राइट? जून 5th को इस बार प्रीलिम्स हुआ था, आई गेस जून 22 या 21 को रिजल्ट आ गया था, ठीक है? जिनका क्वालिफाई नहीं होता ना, दो 2 महीने तो मोर और लेस, अगर आपने इफ यू वर नॉट गाइडेड बाय समवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना, तो 1 से 2 महीने आप लोग खराब कर देते हो, राइट? मतलब है, आप बहुत इजीली मान के चलो कि होश जो आता है ना, वो मिड अगस्त में जाकर आता है, राइट? आई एम सेइंग कि ये होश आता है, राइट? यू जस्ट गेट इनटू योर कॉन्शियस अगेन कि हाँ, आफ्टर दैट सेटबैक आप अगेन यू कम बैक टू द सेंसेस कि हाँ, राइट, कि अब दोबारा तैयारी करनी है। मिड अगस्त में भी यू आर देन अगेन वेरी स्कैटर्ड, राइट, कि अब करना क्या, एंड उस टाइम अगेन इफ यू आर नॉट अगेन गाइडेड, ठीक है, तो देन अगेन योर स्ट्रेटेजी कैन बिकम स्कैटर्ड। हो सकता है आप इस टाइम पे अच्छे तरीके से मेंस की तैयारी कर रहे हो सकता है आप बहुत स्कैटर्ड तरीके से कभी प्रीलिम्स पकड़ लिया किसी दिन, कभी पॉलिटी का कोई चैप्टर रिवाइज कर लिया, 2 दिन आंसर लिख लिए, किसी दिन ऑप्शनल पकड़ लिया, इस तरीके से एक स्कैटर्ड तैयारी चल रही है, राइट? एंड हो सकता है कुछ लोग, क्योंकि उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, एंड देन अगेन प्रीलिम्स इज गेटिंग डिफिकल्ट, राइट? आई एम नॉट डिनाइंग एनी fact as wrong, right? These are not wrong facts, right? But the thing is ki there is a proper way you have to pace your preparation, right? prelims difficult हो रहा है, ये एक फैक्ट है, ठीक है? प्रीलिम्स क्लियर करना जरूरी है, ये भी एक फैक्ट है, बट क्या सिर्फ प्रीलिम्स करना इस टाइम पे सही है? ये गलत है,
right? And ye log, usually this second category, because of the setbacks they have faced, maybe it could be one setback, maybe वो 21 में भी नहीं उनका क्लियर, वो 20 में भी नहीं हुआ, तो it could be हो सकता है ऑल्टरनेटिवली ऐसा आ रहा है, लेकिन जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ होता, यूजुअली the chances, the tendency for them to slide back into prelims again is much higher than other students, right? And फिर ये एंड फिर ये एक साइकिल बनता जाएगा। आप प्री में फेल हुए, ठीक है, आप फिर से प्री की प्रिपरेशन में चले गए, ठीक है, आपकी मेंस की प्रिपरेशन हो गई इग्नोर, ठीक है। मेंस की प्रिपरेशन इग्नोर होने का मतलब है, हो सकता है 2023 में आप प्रीलिम्स क्लियर भी कर ले 28 मई को, बट देन अगेन देयर आर 90% चांसेस कि आपका मेंस का एग्जाम जो है वो 90% क्लियर नहीं होने है, एंड अगेन आप प्री वाले उसमें आ गए हो, राइट? तो आपने किया क्या एक साल में कि आप प्रीलिम्स 2022 से निकले, आप प्रीलिम्स 2023 में गए, और आप फिर से प्रीलिम्स 2024 में आ गए, राइट? while what should have happened कि आप 22 में फेल हुए, you accept that, you reorient your strategy as per the demand of the demand of UPSC, ठीक है? यूपीएससी की डिमांड ये है, डिमांड एज इन कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, अगर प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग मार्क्स मिल रहे होते, अगर वो मेरिट में काउंट हो रहे होते, आप प्रीलिम्स की तैयारी करो, बट यूपीएससी का करंट पैटर्न ये है कि आपके मेंस के मार्क्स ही जुड़ेंगे आगे जाके। सो योर स्ट्रैटेजी शुड बी कि ठीक है, मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना है, उसके लिए मेरे पास एडिक्वेटली 100 दिन होंगे, 110 दिन होंगे, लेकिन अभी मुझे मेंस भी क्लियर करना है। अगर मैंने मेंस नहीं क्लियर किया तो ये कब 22 से लेके ये 26 हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? या फिर आप प्रिपरेशन क्विट कर दोगे, ठीक है? तो आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि ठीक है, 22 के बाद जो मुझे टाइम मिल रहा है, ठीक है, इसमें मैं अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से पेश करूं कि 23 का प्रीलिम्स जब मैं लिखने जा रहा हूं 28 मई को, राइट, व्हेन आई एम गिविंग दिस प्रीलिम्स, आई एम डेड श्योर कि ठीक है, once I am clearing this prelims, I will be appearing for the interview of 2022. देखो इंटरव्यू के बाद क्या होता है, no one knows, but at least you should at least you graduate in this ladder of preparation, right? कि ठीक है, prelims दिया था, नहीं हुआ, prelims अगला दिया, I went to the interview, and अगर means की preparation अच्छी है, तो there are very high chances कि आपका इंटरव्यू जो है वो कन्वर्ट होगा एक रैंक, राइट? रैंक कौन सी है, नो वन नोस, लेकिन चांसेस हायर होते हैं, राइट? एंड इन दिस गेम ऑफ यूपीएससी देयर इज ऑलवेज, वी ऑलवेज टॉक इन द रिलेटिव सेंस, कोई ये नहीं कह सकता हाँ आपका हो जाएगा या आपका नहीं होगा, राइट? देयर आर ऑलवेज चांसेस कि हाँ आपके आज चांसेस कल से बेटर है, कल शायद उससे खराब हो जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परसिवरेंस, योर डिसिप्लिन, योर कंसिस्टेंसी, राइट, एंड योर राइट स्ट्रैटेजी। अगर आप अप्रैल में जाके मेंस कर रहे हो और अभी आप प्रीलिम्स कर रहे हो ना, बी रेस्ट अश्योर्ड कि आप आइदर प्रीलिम्स या मेंस में फेल होगे, ठीक है? मतलब दिस इज अ वेरी ब्रूटल जर्नी, वेरी आई वुड से अ डिफिकल्ट जर्नी, और मुश्किल होती जा रही है विद टाइम, एंड दैट डिमांड्स कि हम टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर ले, ठीक है, राइट, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले, एंड फिर उसके बाद चाहे या फिर जून में पछतावा हो, चाहे फिर वो अगले नवंबर दिसंबर में पछतावा हो, उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि डीप डाउन कि आई हैड मेड अ मिस्टेक बैक देन व्हेन समवन वाज टेलिंग मी कि ये गलत बात है, राइट? सो if you had been on the right track, very well, right? जैसे एक पोल मैंने डाला था SOMP पे, we had put up a poll on SOMP channel, right, where almost 1/4 of the students said that they are on the right track, right? Very well, right? Right track का इस टाइम पे एक ही मतलब हो सकता है कि आप in whatever sense you are preparing for mains, right? I'm not saying you are preparing only for mains, but this should be somewhere around 80-20, right? Your 80% preparation should be of means, it could be GS, it could be optional, an optimum mix would be GS and optional, right? It could be reading, it could be answer writing, but yes, you know कि आप means की तैयारी कर रहे हो, right? Then almost 3/4 of the students were not on the right track, right? उसमें से कुछ का ओवर कॉन्फिडेंस का इशू था, which I believe is a sin in this preparation. How can we be over confident in this preparation जहाँ पे
यू नो एवरी डे यू हैव टू मेक प्रोग्रेस, राइट? अदरवाइज कोई आ रहा है पीछे से जो आगे निकल जाएगा, राइट? ऐसी ही है ये प्रिपरेशन, ठीक है? देन समवन वन इनडिसिप्लिन्ड, किसी को पता ही नहीं है करना क्या है, ठीक है? और कोई प्री की तैयारी में लगा हुआ है, कोई टेलीग्राम और यूट्यूब देख रहा है, ठीक है? तो ये 3/4 स्टूडेंट्स थे, ठीक है? अगर इसी को हम ले लें कि यू नो दिस थिंग इज हैपनिंग, तो अब मान लो यही 100 स्टूडेंट हैं जो प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, ठीक है? इसमें से हम मान के चलो 25 तैयार हैं फॉर द एंटायर जर्नी, राइट? 75 नहीं तैयार है, राइट? बी इट प्रीलिम्स, बी इट मेंस। 25 आर रेडी, 75 आर नॉट रेडी, ठीक है? इन 75 में से आप ये मान के चलो शायद तुक्के से 10 लोग प्रीलिम्स निकाल जाएंगे। इन 25 में से आप ये मान के चलो शायद 10 लोगों का रह जाएगा प्रीलिम्स, राइट? तो 15 इधर से आ गए और 10 लोग इधर से आ गए, ये मेंस लिख रहे हैं। फाइनली 25 लोग मेंस लिख रहे हैं। अब ये 10 लोग तो वैसे ही धक्के से आ गए मेंस लिखने, इनको यू नो दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर मेंस। तो अल्टीमेट जो कंपटीशन रहेगा ना, वो 15 लोगों में रहता है। और ये वाले 15 लोग भी ना फाइनली ये भी धीरे धीरे छटने लगेंगे। छटने कैसे लगेंगे? हाउ विल दे बी फिल्टर्ड? क्योंकि प्रीलिम्स के बाद भी तैयारी करनी है ना, उस टाइम भी लोग फिर यू नो डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में वो हार मानने लगते हैं, ठीक है? 15 से ये कब 10 होंगे, कब ये 5 होंगे, कब ये 3 होंगे, कब ये 2 होंगे, राइट? एंड देन वी से कि यू नो वो टॉपर बन गया। वो टॉपर इसलिए बना था, या फिर यू नो ही वाज एबल टू गेट अ रैंक, ही वाज एबल टू गो टू द इंटरव्यू, ही वाज एबल टू क्लियर मेंस, क्योंकि ही वाज परसिस्टेंट। वो पिछले 1 साल से सही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा था। he was following what was required in October, what was required in November, what was required in next August, right? So that is why he was able to get through the list, right? So this this is just a, I would say a vision or a मैक्रोस्कोपिक व्यू मैंने आपको दिया है कि आपकी प्रिपरेशन होनी कैसे चाहिए। नो मैटर आप बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हो जिसने 22 प्रीलिम्स नहीं दिया है, ठीक है? तब भी आपको मेंस ही करना है, ठीक है? हो सकता है आपने 22 वाला प्रीलिम्स दिया हो, यू हैव गिवन इट, राइट? क्वालिफाई किया या नहीं किया, आपको मेंस ही करना है, ठीक है? और देन अगेन द अनदर कैटेगरी विल कम, ठीक है? जिनका मेंस निकल जाता है वो इंटरव्यू में आ जाता है, ऑफ कोर्स उसकी थोड़ी देर बाद बात करें, ठीक है? तो ये था एक जस्ट ब्रॉडर विजन कि हमें विदाउट एनी डाउट आई वांटेड जस्ट वांटेड टू कन्विंस यू, राइट? कि ये टाइम मेंस का ही है। अगर आप मेंस नहीं कर रहे हो इस टाइम पे, और अगर आप कोई भी यू नो यू आर सर्चिंग फॉर सम एक्सक्यूज, यू नो आज तो वो पॉलिटी का ना वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लेता हूँ, यू नो वो नहीं पढ़ पाया था मैं, और एक आंसर लिखना छोड़ देता हूँ, या मे बी गवर्नेंस वो छोड़ देता हूँ पढ़ना, यू नो यू आर चीटिंग योरसेल्फ, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आई एम सेइंग doing vice president at the cost of doing a chapter of governance, ठीक है? That is a sin at this moment, right? प्रीलिम्स क्यों नहीं करना है, या फिर ओनली प्रीलिम्स क्यों नहीं करना है इस टाइम पे? उसके दो कारण है। एक तो मैंने बता ही दिया कि मेंस करना है, ठीक है? और टाइम कम है तो दोनों चीजें एक साथ हो नहीं सकती है। एंड मेंस वी नो इज ऑलमोस्ट 7 times बिगर देन व्हाट प्रीलिम्स इज, राइट? देन प्रीलिम्स के लिए इतना टाइम आपको चाहिए भी नहीं है, राइट? यू डू नॉट रिक्वायर 8 कोर डेडिकेटेड मंथ्स फॉर प्रीलिम्स, ठीक है? जो प्रीलिम्स का फाइनल आउटपुट आना है ना, वो लास्ट के 110 डेज में ही आना है, ठीक है? और अगर आप उन 100-110 में दिन में नहीं पढ़ते हो, देन देयर लाइज द इशू, राइट? आप ये नहीं सोच सकते कि मैं अगस्त सॉरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पढ़ लेता हूँ प्रीलिम्स के लिए, उसके बाद मैं ढीला हो जाऊँ, ठीक है? दिस इज नॉट द वे इट विल वर्क आउट, राइट? सो आई होप आई वाज able to convince अभी तक whatever I have said, my objective was just कि I wanted to convince you कि ये time means का है, right? I was able to convince, right?
इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, राइट? नेक्स्ट आई विल टेक अप कि व्हाट कैन बी योर स्ट्रेटेजी इन मेंस, राइट? किसी को डाउट है कि नहीं नहीं प्रीलिम्स ही कर लेना चाहिए मुझे, सिर्फ प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि यू कैन नॉट डू even a bit of prelims at this moment, but I am saying you cannot do only prelims at this moment. हेलो Yes, please. सर, आपने बोला कि मेंस की प्रिपरेशन अभी होनी चाहिए। सर Yes. एक चीज सब लोग बोल रहे हैं कि मेंस की प्रिपरेशन अभी होनी चाहिए, बट एक होता है कि अच्छी मेंस का प्रिपरेशन का डेफिनेशन क्या है? हाँ, वो मैं आऊंगा। My ठीक point of saying or my discussion was centered around कि are you convinced कि मेंस का ही टाइम है ये? है। बस यस सर, इतना, यस ठीक है है। ना? बस थैंक यू सर। ठीक है, ओके, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय आई गेस मयंक, राइट? क्या है अच्छी मेंस की प्रिपरेशन? व्हाट इज गुड मेंस प्रिपरेशन? इसका आंसर बहुत क्लियरली यूपीएससी खुद ही दे देता है, ठीक है? 7 पेपर है, एसए, जीएस 1, 2, 3, 4, ऑप्शनल, पेपर 1, पेपर 2। मार्क्स क्यूमुलेटिव आते हैं। मान लो आपके एसए में एक्सपेक्टेड थे 130, आगे 120, ठीक है, 10 नंबर कम हुए। लेकिन अगर जीएस 1 में आप खींच गए 15 नंबर तो किसी को पता नहीं चलेगा, फाइनल लिस्ट में आपके एसए में 10 कम भी आए थे, राइट? सो फाइनल जो आउटपुट है दैट इज कि व्हाट मार्क्स आर यू गेटिंग out of 750, right? This is the final, I would say, the criteria on which you will be getting a rank, right? यही हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है, ओके? मतलब है कि हमें एसए तैयार करना है, हमें जीएस 1 तैयार करना है, 2 तैयार करना है, ऑप्शनल तैयार करना है। देखो अनलाइक प्रीलिम्स ना, यहाँ पर यूपीएससी हमारी बहुत मदद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो डिफाइंड सिलेबस देता है हमें, ठीक है? अब प्रीलिम्स में वो किसी साल इंटरनेशनल रिलेशन पूछ लेते हैं, किसी साल कुछ उल्टा सीधा पूछ लेते हैं। नॉट हैपनिंग विद मेंस, राइट? इट हैज नॉट हैपेंड इन द पास्ट 9 और 10 मेंस। 2013 से जब सिलेबस बदला है तब से लेके 2022 तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मोर देन 10-20% पेपर आपका वियर्ड आ जाए, राइट? ऐसा नहीं हुआ है। एंड दैट इज अ वेरी रिलीविंग थिंग फॉर अस कि एटलीस्ट 80% पेपर को हम प्रिपेयर करके जा सकते हैं, और ऑप्शनल में तो इट कैन इवन गो अप टू 85%, 90%, 100% डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन, राइट? सो सबसे पहली बात, सिलेबस के साथ जो द पर्सन हु इज नॉट वेल वर्स्ड विद द सिलेबस, ठीक है, सिलेबस को चिपका लो अपने सामने, अपने साथ रख लो, ठीक है? until and unless you are not acquainted with the syllabus, जब तक आपको सिलेबस नहीं पता है ना, बिलीव मी, आप कभी तैयारी कर ही नहीं सकते हो मीन्स, राइट? कीप रिविजिटिंग इट, पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो। आधी बार तो ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता ना, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम GS1 एंड जस्ट रीच टू GS4, राइट? यू आर एबल टू जनरेट 5-6 पॉइंट्स, ठीक है? एक हिस्ट्री का पॉइंट कर दिया, एक सोसाइटी का कर दिया। ऑफ कोर्स आई एम सेइंग फॉर अ वेरी जेनेरिक क्वेश्चन, वो हो सकता है हर पॉइंट हर जगह ना एप्लीकेबल हो, बट सिलेबस का यही फायदा होता है, यू शुड रिमेम्बर ईच एंड एवरी ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस, राइट? सो एक अच्छी प्रिपरेशन का सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है सिलेबस। द सेकंड कंपोनेंट इज PYQs, राइट? आप देखो हाँ किस टाइप के सवाल पूछ रहा है यूपीएससी, ठीक है? जैसे वो चेंज कर रहा है धीरे 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 धीरे, ठीक है, लेकिन इतना भी ब्रॉडर कोई, मतलब इतना भी कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा है, अनलाइक प्रीलिम्स। ऑफ कोर्स चेंजेस हैं और चेंजेस होंगे भी। अगर आप चेंज को मान के चलो, जैसे फॉर एग्जांपल 2022 का क्वेश्चन सेल्यूलोज वाला, राइट? इनडायरेक्टली यूपीएससी ने कंफ्यूज किया, वो पूछ बायोजियोकेमिकल साइकिल ही रहा था, राइट? नाउ बायोजियोकेमिकल साइकिल अगर वो पूछ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि यूपीएससी इनडायरेक्टली आपको कह रहा है, देखो मैं आपसे स्टैटिक भी पूछूंगा, राइट? और अगर वो फोटोकेमिकल स्मॉग पूछ रहा है, अगर वो आपसे इनिशिएटिव्स आफ्टर द क्योटो प्रोटोकॉल पूछ रहा है, और आप स्टैटिक एनवायरनमेंट नहीं तैयार करके गए हो, एंड ऐसा नहीं है ये शौक यूपीएससी ने 2022 में ही दिया है, वो उसने 21 में भी दिया था, 20 में भी दिया था, 19 में भी दिया था, राइट? तो 22 वालों के लिए तो ये शौक नहीं था। तो अगर आप स्टैटिक अनप्रिपेयर्ड गए थे तो ऑफ कोर्स
आप उस लेवल का, उस क्वालिटी का आंसर नहीं डिलीवर कर पाए होंगे उधर, ठीक है। सो PYQs आर योर गाइडिंग लाइट कि ओके इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल धीरे 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 GS2 में यूपीएससी इंक्रीज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ केस लॉज, राइट। अगर 2013 14 15 इवन 16 आप देखो, कम पूछे जाते थे, राइट। डायरेक्टली वो इनडायरेक्ट हमारे वो होती थी कि यू हैव टू मेंशन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, बट धीरे धीरे वो आने लगे। एक क्वेश्चन में आया, फिर दो में आए, फिर तीन। अगर आप 2022 में देखो तो आई गेस 3 या 4 क्वेश्चन में डायरेक्टली यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के आसपास ही सवाल पूछ दिए, ठीक है। या तो डायरेक्ट एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन में पूछ कह दिया है कि रेफर टू केस लॉज, या फिर क्वेश्चन ही उसके आसपास बनाया है कुछ, राइट। सो दिस इज वन वे यू नो कि ओके 2023 के लिए अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनदर थिंग इज, जैसे फॉर एग्जांपल PYQs ही आपको बताते हैं कि ओके वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, देखो अगर पिछले 5 6 साल 8 साल का ट्रेंड देखे तो दिस सब्जेक्ट हैज नॉट बीन इम्पोर्टेंट, राइट। रिलेटिवली दैट इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस पर 1 महीना 1.5 महीना बिता रहे हो, ठीक है, इट इज अटर फूलिशनेस, ठीक है। वो कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं अगर 2023 में इसमें से 5 क्वेश्चन आ गए, देखो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। बट अगर आपको नहीं आते हैं वो, तो चांसेस है कि 99 लोगों को उधर नहीं आते हैं 100 में से, ठीक है। एक जो होगा वो भी हिस्ट्री ऑप्शनल वाला होगा, ठीक है। तो PYQs पे थोड़ा सा विश्वास करें, उसके साथ लर्न, कीप लर्निंग, राइट। अगर मान लो यूपीएससी 2022 में वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस से 4 5 सवाल निकाल देता, राइट, तो 2023 वालों के लिए जरूरी हो जाता, राइट। आई एम नॉट सेइंग आप वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस कंप्लीटली इग्नोर कर दो, बट once you are done with the other parts of the syllabus, right, then you move on to world history, right। पता लगा आपका ऑप्शनल इग्नोर्ड है, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में लगे हुए नॉर्मल लो वे में, राइट। दिस इज नॉट द वे टू गो अबाउट PYQs syllabus, they tell you okay this is the position you have to adopt at this point of time, right। अगर आप इससे इतर if you are migrating somewhere from that space, it means there's a preparation problem in your overall preparation, right। तो PYQs syllabus, then comes the thing, ठीक है, कि अब हमें फाइनली हमने PYQs देख लिए और सिलेबस देख लिया। नेक्स्ट थिंग इज कि देखो अब हमें उधर जाके आंसर्स लिखने। आंसर्स लिखने का मतलब है, अब इसमें भी 2 पार्ट होते हैं मेनली, आई वुड से। वन इज कंटेंट, ठीक है। आई वुड से 3 पार्ट होते हैं, कंटेंट, कंटेक्स्ट, राइट, एंड फाइनली यू हैव टू डिलीवर एन आंसर, राइट। अब बहुत पहले एक ये हवा चलती थी कि कंटेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप बस स्ट्रक्चरिंग कराओ उधर, अंडरलाइनिंग कराओ, जैसे वैसे डायग्राम बनते हैं बनाओ, ठीक है, और मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, राइट। आपको भी पता है, अब तो सबको पता है कि कंटेंट की कितनी जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ कंटेंट की जरूरत है, राइट। डोंट टेक माय स्टेटमेंट्स इन एक्सट्रीम सेंस, लेकिन कंटेंट के बिना काम नहीं होगा। अगर वो आपसे कल्चर का सवाल पूछ रहा है, तो अगर आप वहां पे स्पेसिफिक्स नहीं डालते हो, राइट, देखो अगर तो बहुत उल्टा सीधा सवाल आ गया, डीकोलोनाइजेशन ऑफ मले पेनिनसुला टाइप आ गया कुछ, तो उसका किसी को आइडिया नहीं है, राइट। लेकिन अगर सवाल ही फाइन आर्ट्स में से बन रहा है, या फिर मान लो कि आपके आर्किटेक्चर जो हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं उसमें से बन रहा है, अब एक आपका दोस्त लिख के आ रहा है अच्छे अच्छे पॉइंट्स, मीनाक्षी टेम्पल, लेपाक्षी टेम्पल, ये टेम्पल, वो टेम्पल, आप वहाँ ब्रॉडर सेंस में नागरा द्राविडा में लगे हुए हो, ठीक है, you will get a 2 out of 10, your friend will get a 6 out of 10, ठीक है। और आप फिर सोचते रहोगे करा क्या था उसने उसने आंसर राइटिंग ऐसे करी होगी, वैसे करी होगी, उसने ये करा होगा, राइट। नो, वो वहां पर लिख के आया था जो एग्जामिनर पूछ रहा था, राइट। अब अगर मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल आ गया, आप कितनी ही अच्छी वहां पे सजावट कर लो, कितने ही अच्छे वहां पे आंसर की स्ट्रक्चरिंग कर लो, नॉट डिस्काउंटिंग की स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, बट अगर वहां पे आप बता ही नहीं रहे हो कि ये टाइमलाइन है, ये ईयर है, ये पर्सनालिटी इन्वॉल्व है, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के नाम नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप 2 2.5 नंबर से ज्यादा नहीं खींच सकते हो वहां पे,
ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के पीछे वाली कॉपी, एग्जामिनर के आगे वाली कॉपी वो मेंशन कर रही है उन सब चीजों को, राइट, एंड ही इज बाउंड टू गिव यू लेसर मार्क्स, यू अंडरस्टैंड दैट, दिस इज द साइकोलॉजी विथ विच एन एग्जामिनर सिट्स देयर एंड इवैल्यूएट्स, वो हमेशा एक रिलेटिव मोड में चलता है, ठीक है, ओके ये कॉपी मैं देख रहा हूँ, इससे पीछे वाली कॉपी इससे अच्छी थी, ठीक है, तो अगर मैंने उसको 6 दिए हैं तो आई कैन नॉट गिव हिम अ 6 एट एनी कॉस्ट, ठीक है, अब वो डिपेंड करता है, वो आपको 5 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, राइट, इट ऑल डिपेंड, बट वो आपको इससे कम ही देगा, राइट, सो अब ये the point I'm trying to make here is कि content remains the king, right, if not the only king, it is one of the the important pillars of your mains preparation, right, आप अच्छे कंटेंट के बिना नहीं जा सकते हो एग्जाम में, ठीक है, नेक्स्ट इज कंटेक्स्ट, जस्ट कंटेक्स्ट से मेरा मतलब, वो कंटेक्स्ट मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अब आप समझ रहे हो चीजों को, नहीं समझ रहे हो, अगर क्वेश्चन घूम कर ही आएगा, अगर आप सिर्फ रट के गए हो आप कभी मेंस क्लियर कर ही नहीं सकते, राइट, अब तो प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर होगा, राइट, अगर आप रट के गए हो सिर्फ, ये कंटेक्स्ट का मतलब है कि इसका एक ही सोल्यूशन है, न्यूज़पेपर एंड योर कंसिस्टेंट प्रिपरेशन, राइट, प्लस प्रायोरिटाइज प्रिपरेशन, आप तभी कंटेक्स्ट चीजों का समझ सकते हो, ठीक है, एंड यू इंटरलिंक द थिंग्स, और कंटेक्स्ट भी कैसे समझ में आएगा, व्हेन यू आर क्लियर विद द सिलेबस, ओके इकोनॉमी में कोई दिक्कत आ रही है, यू अंडरस्टैंड के ओके ओके ठीक है, पॉलिटिकली दिस थिंग कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट, तो इसके लिए लोकल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, राइट, या इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ज्योग्राफी में कोई दिक्कत आ रही है, कि हमारा ओके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसा था, इंटरनल सिक्योरिटी में कोई दिक्कत है, कि टेरेन में हमारे प्रॉब्लम है, बॉर्डर इश्यूज ये वाले हैं, इसलिए हमारे ये दिक्कत, तो कंटेक्स्ट एंड इंटरलिंकेजेस ये न्यूज़पेपर के थ्रू, ये कंसिस्टेंट प्रिपरेशन के थ्रू, ये एक वो होलसम प्रिपरेशन के थ्रू ही आएगी, देन इज द आंसर राइटिंग, राइट, ऑफ कोर्स 1 out of 100 students are there who just read the things, who are aware of the context, they sit in the mains, they clear the mains, right, ये exceptions हैं, क्योंकि ये लोग either they have arts background or they have done some answer writing, good answer writing in the past, right, that's why they answer writing उनका कभी weakness होती नहीं, right, so do not go with this इन लोगों के बेसिस पर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज मत करना, ठीक है, 99 out of 100 people will not be able to clear mains unless they have done good amount of answer writing would say, ठीक है, किसी के लिए वो हो सकता है 8 ही फुल लेंथ टेस्ट थे, किसी के लिए हो सकता है वो 12 थे, किसी के लिए हो सकता है वो डेली आंसर राइटिंग थी, ठीक है, किसी के लिए हो सकता है वो वीकली आंसर राइटिंग थी, सो इट डिपेंड्स, राइट, ऐसा नहीं है कि आप 100 टेस्ट ही लिखोगे मेंस वाले 20-20 क्वेश्चन के तो ही आपका कुछ होगा, राइट, इट नॉट लाइक दैट, बट यस लिखना स्टार्ट करोगे तो देयर विल कम अ पॉइंट व्हेन यू विल स्टार्ट टू गेट द थिंग्स कि ओके ठीक है, नाउ आई एम गेटिंग इनटू द ग्रूव, राइट, नाउ आई एम गेटिंग इनटू द पोजीशन वेयर आई एम कंफर्टेबल, कल अगर आप मुझे एक क्वेश्चन दे दोगे आई विल बी एबल टू डिलीवर अ गुड आंसर ऑफ इट, मे बी नॉट इन 7 minutes, मे बी नॉट इन 11 minutes, बट यस शायद 10 मिनट में 15 मिनट में मैं आपको आंसर जरूर दे दूं, ग्रेजुअली मैं टाइम भी कम कर लूँ, राइट, सो अगर मेंस की प्रिपरेशन देखें तो इफ आई वर टू समराइज, सिलेबस, PYQs, और अगर टेंजिबल प्रिपरेशन की बात करें जिसके बेसिस पर रिजल्ट आने वाला है, दैट विल बी कंटेंट, दैट विल बी कंटेक्स्ट, कंटेंट एंड योर आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग अधूरी है अगर आप उसको रिव्यू नहीं कर रहे हो, अगर आप उस आंसर राइटिंग के बेसिस पर अगला आंसर
अगले 2 दिन बाद जो आंसर लिखने वाले हो, जब भी रिव्यूड कॉपी आ गई है उसके बाद वाला आंसर आप उससे बेटर नहीं लिख रहे हो, राइट? तो आंसर राइटिंग इज, आई वुड से, फेटल देन, राइट? फेटल इसलिए क्योंकि एक तो आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो और वो आपका टाइम भी खा रही है फिर, राइट? सो इन दैट सिनेरियो इससे बेटर है अगर आप नहीं रिव्यू कर रहे हो ना, या तो आप एक्सेप्ट कर लो कि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस प्रिपरेशन इन अ वेरी गुड मैनर, राइट? और आप ध्यान से कर ही नहीं रहे हो उसको तैयारी, तो मतलब द रिजल्ट इज रिटन, राइट? अगर आप आज 2.5 नंबर ले रहे हो तो वेरी हाई चांसेस कि आप 1 साल बाद भी 2.5 नंबर ही लो, राइट? एंड दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आंसर राइटिंग, राइट? आंसर राइटिंग, जो फीडबैक मिला उसको रिव्यू करो. If there is someone with whom you can discuss your answer, maybe two friends, some senior or someone else, right? उसके साथ डिस्कस कर लो कि देखो मेरी ये persistent problem रह रही है, ठीक है, what should be done, right? Although जो evaluators होते हैं, wherever they are, right, they try their best to check the copy in the best possible manner, but कभी कभी you're not able to get the things what they're saying, right? तो in that scenario, आइदर मतलब जब भी आपको कॉपी मिले, सिट विद दैट फॉर 20 मिनट्स 30 मिनट्स, एंड उसके जो लर्निंग्स हैं उसको कहीं ना कहीं लिखते रहो, आइदर ऑन दैट पर्टिकुलर शीट या फिर एक सेपरेट शीट, राइट? एंड वॉट एवर आर योर परसिस्टेंट पेन पॉइंट्स, राइट? मान लो एग्जामिनर बार बार कह रहा है कि आप बड़ा सेंटेंस लिख रहे हो, आप 6 लाइनों का सेंटेंस लिख रहे हो, 7 का लिख रहे हो, 8 का लिख रहे हो, एंड यू हैव नॉट बीन एबल टू करेक्ट दिस थिंग आफ्टर 10 कॉपीज, 12 20 कॉपीज, राइट? दिस मीन दिस इज अ परसिस्टेंट पेन पॉइंट फॉर यू, राइट? ये आपको 100% एग्जाम में भी दिक्कत देगा, राइट? देन इसको कॉन्शियसली आपको एड्रेस करना होगा, राइट? वॉट एवर लॉन्गर सेंटेंसेज यू हैव रिटन, राइट, उसको आप कॉन्शियसली बैठे, एक्स्ट्रा आधा घंटा निकाल लें, एंड देन उसको आप छोटा करें. अगर नक्सलिज्म की डेफिनेशन आप लिख रहे हो 5 लाइनों में, 6 लाइनों में, बैठो कैसे उसको 2 लाइनों में लिखूं मैं, डिस्कस करो फ्रेंड के साथ, कि सीनियर के साथ डिस्कस करो ये और है, आपने किसी कोई और हेल्प कहीं से ली हुई है, अवेल की हुई है, वहां पे डिस्कस करो, प्लीज हेल्प मी रिड्यूस दिस टू 2 लाइन्स 3 लाइन्स, राइट? So this is good means preparation. This I was talking in terms of GS, right? essay के लिए भी यही सच है. of course essay का एक component आ जाता है आपका content, then एक component again context, and then answer writing, right? Content more or less taken care of by your GS preparation, apart from examples, quotations and everything. Context, जिस टाइप के आजकल टॉपिक्स आ रहे हैं, इट इज समवेयर इम्प्लाइंग कि आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? इट कैन नॉट बी कि आप लास्ट के 10 दिन में रट कर गए एसए का कुछ टॉपिक एंड यू आर डिलीवरिंग द एसए देयर. जिस टाइप के टॉपिक्स अब आ रहे हैं, इट रिक्वायर्स कि आप डेली डेली कुछ ना मे बी 5 मिनट्स, मे बी 7 मिनट्स आप सोच रहे हैं चीजों के बारे में, एंड दिस इज व्हाई न्यूज़पेपर्स अगेन बिकम इम्पोर्टेंट, राइट? सो एस्से के लिए भी आपको न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट. देन अगेन आंसर राइटिंग से मेरा मतलब है एस्से राइटिंग. ऑफ कोर्स कब करनी है ये एक अलग सवाल है, बट एस्से राइटिंग मतलब इट कुड बी 4 essays, इट कुड बी 6 essays, इट कुड बी आफ्टर prelims as well, right? If your preparation before prelims is centered on uh, GS and optional, you can safely say to yourself that okay, I will start my essay preparation after prelims, but उसकी कंडीशन ये है कि आपकी जीएस और ऑप्शनल की प्रिपरेशन बढ़िया हो जानी चाहिए, राइट? ताकि आपको प्रीलिम्स के बाद एसए के लिए टाइम मिल जाए, राइट? ये थी कि क्या अच्छी मेंस की तैयारी होनी चाहिए. इसमें किसी को कोई डाउट? उसके बाद हम आते हैं कि व्हाट यू कैन स्टार्ट विद नाउ, राइट? या फिर क्या आपको करना चाहिए इस टाइम पे. इसमें किसी को कोई डाउट? एनीवन? एनीवन?
सर हाँ जी, सर अभी सफिशिएंट टाइम है ना, मतलब 23 के लिए, कि मतलब अभी से करे तो हो जाएगा? मैं उसी पर आ रहा हूँ नेक्स्ट। इसमें जो डिस्कस किया वो तो नहीं कुछ इशू, अगला उसी पे आ रहा हूँ मैं। नहीं ठीक है सर, ओके थैंक यू। ठीक है, ओके। देखो, सफिशिएंट टाइम है या नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अनटिल अनलेस इट इज योर लास्ट अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट और बाय एज, ठीक है, यू शुड सीरियसली कंसिडर कि आपको अटेम्प्ट देना है कि नहीं देना है। ठीक है, एंड दैट डिपेंड्स कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, 2023 राइट, आप अटेम्प्ट आपने देने वाले। ठीक है, इफ यू आर दैट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिसने ना आज तक हिस्ट्री पढ़ी है, ना पॉलिटी पढ़ी है, ना इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मतलब कुछ भी बेसिक भी नहीं पढ़ा है कभी, ठीक है, ना आपने कभी ऑप्शनल छुआ है, ठीक है, बट क्योंकि आपको बस जोश है अंदर से, ठीक है, कि अटेम्प्ट देना है मुझे, ठीक है, तो आप अटेम्प्ट देने निकल पड़े हो, या आप सोच रहे हो मैं अटेम्प्ट दे दूंगा, दिस इज फूलिशनेस, राइट। अटेम्प्ट वेस्ट मत करना, ठीक है, कोई भी तैयारी नहीं है तो अटेम्प्ट मत देना, ठीक है, योर अटेम्प्ट शुड बी 2024 देन, राइट। इट इज बेटर टू मूव स्लो देन टू मूव इन द रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है। 2023 में अगर आपने अटेम्प्ट दिया, बिलीव मी आप बुरे फंस जाओगे, राइट। क्यों? क्योंकि आप प्रीलिम्स दोगे, प्रीलिम्स देने के बाद मोस्ट लाइकली आपका प्रीलिम्स होगा नहीं, अगर हो गया तो वो और ज्यादा विशिष्ट सर्कल होता है, ठीक है, क्योंकि आप मेंस की तैयारी में लगोगे, मेंस में आप पक्का बाहर हो जाओगे, देन अगेन आप प्री की तैयारी में लग जाओगे, मेंस की तैयारी कभी होगी नहीं फिर, ठीक है। नंबर 2 वुड बी जिनका ऑप्शनल नहीं तैयार, you are not well with the optional, you are okay with GS, right? GS से मेरा मतलब है, आई वुड से कि ठीक है, आपने पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पहले पढ़ी हुई है, मे बी लास्ट 2 महीने में 3 महीने में रिवाइज नहीं की, बट यू हैव रेड इट बिफोर, राइट। एंड मेंस रिलेटेड जीएस सब्जेक्ट्स के भी यू एटलीस्ट हैव एन आइडिया गवर्नेंस क्या होता है, पहले देखे हुए हैं टॉपिक्स, राइट। एंड वो भी ऐसा है कि सिर्फ मेंस वाले टॉपिक्स रहते हैं आपके, जैसे गवर्नेंस रहता है, एथिक्स रहता है, राइट, सोसाइटी रहता है, सिर्फ ये वाले टॉपिक्स रहते हैं, देन यू कैन कंसिडर योर अटेम्प्ट, राइट, कि हाँ ऑप्शनल में मैं टाइम देता हूँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, पैरेलली मैं अपना जीएस का टाइम देता हूँ, ठीक है। मैं इसको कैसे बैलेंस करना है, विल कम टू दैट, लेकिन इस केस में यू हैव टू बी श्योर कि मेरे नेक्स्ट 5 महीने ऑप्शनल के लिए, राइट। डू नॉट बिलीव ऑन दो स्ट्रेटजीज जो कहते हैं कि प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल तैयार कर लें, राइट। कुछ लोगों के लिए हो जाता है, अगेन आई एम सेइंग 1 of the 100 केसेस, लेकिन 99 केसेस का नहीं होता। यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर मेंस अगर आपकी ऑप्शनल की प्रिपरेशन से मेरा मतलब है, इस जो मैं ये वाला क्रॉस लगा हुआ है इससे मेरा मतलब है कि आपने कभी छुआ ही नहीं ऑप्शनल, राइट, कभी देखा ही नहीं है। बट यस, अगर आपने एक रीडिंग की हुई ऑप्शनल की, ठीक है, नोट्स हैं आपके पास, देन इसका मतलब है कि आपने कभी ऑप्शनल देखा हुआ है, तो आपका यहाँ पे काम होगा कि ऑप्शनल एंड जीएस को बैलेंस बनाकर पढ़ते रहें, ठीक है, and in that scenario you can comfortably give the attempt, right। अब ये वाला केस ही एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा सा कि ऑप्शनल की तैयारी अच्छी नहीं है, ठीक है, जीएस की तैयारी आई वुड से डिसेंट है। डिसेंट से मेरा मतलब है कि जो बेसिक्स है जीएस का वो आपका स्ट्रॉन्ग है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, ज्योग्राफी क्या है, वो सब ठीक है। मे बी मेंस रिलेटेड कुछ कंपोनेंट्स आपको यू हैव टू टेक अप, राइट, कि एथिक्स नहीं पढ़ा है अभी तक, सोसाइटी नहीं पढ़ा है, ये सब रहता है, बस बाकी सब ठीक है, राइट। इन दैट सेंस आई वुड से कि इस टाइम पे ऑप्शनल की कोर प्रिपरेशन चलेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी, क्योंकि इसके बिना मेंस क्लियर नहीं होगा, राइट। सेकंड प्रायोरिटी आपकी होगी जीएस की रीडिंग एंड इफ पॉसिबल जीएस की आंसर राइटिंग। आई एम सेइंग इफ पॉसिबल तभी है अगर आपका ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, राइट। ये करो, ये करो,
then when you become comfortable, maybe let's say नवंबर एंड में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, दिसंबर एंड में कंफर्टेबल हो जाते हैं, यू कैन स्टार्ट विद योर आंसर राइटिंग, राइट, कि धीरे धीरे स्टार्ट कर लो. बट आई वुड से कि ये भी पॉसिबल है, राइट, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालना चाहो और आपकी जीएस की रीडिंग्स ठीक है, ठीक है, आप व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिवाइड योर डे, राइट, कि ठीक है मेरे 10 घंटे का मैं एवरेज लेता हूँ पढ़ाई करनी, 5 आवर्स मेरे ऑप्शनल के लिए, ठीक है, 5 आवर्स मेरे जीएस के लिए, इसमें से आई एम कंफर्टेबल विद द प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो मे बी व्हाट आई वुड डे 4.5 hours I would study और 4 hours I will study, 1 घंटा मैं आंसर राइटिंग करूंगा, इवन दिस इज फाइन. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इस टाइम पे ऑप्शनल की बिल्कुल भी आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, राइट, क्योंकि ऑप्शनल में तो आप सिर्फ पढ़ रहे हो अभी, राइट, एंड ऑप्शनल की आंसर राइटिंग शायद हो सकता है आपकी जनवरी में शुरू हो कहीं जाके, हो सकता है थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग आप फरवरी में करो, क्योंकि अगर आपने पढ़ा ही नहीं ऑप्शनल पहले, हाउ विल यू डू द आंसर राइटिंग अनटिल अनलेस देयर इज अ वेरी गुड प्रोग्राम जो आपका शायद एक कंपोनेंट खत्म होने पे 2 आंसर लिखवा देता है, 3 आंसर लिखवा देता है, या यू हैव सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी जो कि आप पढ़ के पार्ट ऑफ द सिलेबस you can write the previous year questions and then someone is evaluating them or reviewing them, that is a different thing. But in most of the cases optional की answer writing, if you have not done the optional syllabus before, वो start नहीं हो सकती है 2-2.5 महीने से पहले, right, 3 महीने से पहले, ठीक है, तो इस केस में यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एन अटेम्प्ट, बट दैट डिमांड्स कि आप रिग्रेसली अगले 5 महीने इन्वेस्ट करें इन ऑप्शनल एंड जीएस पैरेलली, राइट, इक्वली डिवाइडिंग द टाइम, राइट, बट ऑप्शनल के बिना प्रिपरेशन में मत जाना, राइट. देन वुड बी द थर्ड कैटेगरी जिनका ऑप्शनल स्ट्रांग है, ठीक है, जिनके जीएस में भी शायद इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, शायद हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ उनका मेंस वाला पोर्शन रहता है, तो डेफिनेटली ये वाली तो वो कैटेगरी है जो पक्का अटेम्प्ट देंगे देंगे. एंड ये तो वो कैटेगरी है जिसको आंसर राइटिंग भी रिग्रेसली करनी चाहिए, राइट, रिग्रेसली से मेरा मतलब ये है कि अगेन दैट विल डिपेंड कि व्हाट सॉर्ट ऑफ आंसर राइटिंग आर यू गोइंग वांट टू गो फॉर. इट कुड बी डेली, राइट, you are preparing one topic, you are writing on that topic, right, in this manner you will be say completing your syllabus, right. It could be maybe at a gap, right, you are taking time to complete uh, a particular portion, let's say modern history आप complete कर रहे हो and then you are writing something, right. It could be then proper full length type, right, कि आपने GS1 पूरा खत्म किया पहले, देन यू आर राइटिंग अ फुल लेंथ टेस्ट ऑन GS1, ठीक है, इट कुड बी एनीवे, बट यस, इनमें से कुछ आपको कर लेना चाहिए, करना ही चाहिए, राइट, व्हाई, बिकॉज यू आर इन दैट सिनेरियो जहाँ पे आपको ये करना चाहिए, राइट. एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा इधर, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, ठीक है, कि फुल लेंथ आंसर राइटिंग ऑप्शनल एंड GS फुल लेंथ से, वेरी इंपॉर्टेंट, फुल लेंथ आंसर राइटिंग ऑप्शनल और GS की एक साथ मत ले लेना, राइट. एक साथ मत ले लेना मतलब मान के चलो कि अक्टूबर मिड से यू आर स्टार्टिंग, ठीक है, अक्टूबर 15, अगर हम अगले 2 महीने का स्पैन ले ले दिसंबर 15 तक और उसके बाद अगले 2 महीने का ले ले फेब 15 तक, राइट, अगर आपको फुल लेंथ करनी है तो एक चीज की फुल लेंथ इसमें करो और अगले की फुल लेंथ इसमें करो. डू नॉट गो फॉर फुल लेंथ एंड फुल लेंथ लाइक दिस, राइट, ये कंप्लीटली आपकी प्रिपरेशन को रूइन कर देगा, राइट, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज, ठीक है. when you are doing, when let's say you have taken optional full length, right, in that sense what you should do, and full length का मतलब ये होता है कि every 15 days में you are having a test, right, आप 15 दिन पढ़ रहे हो उस टेस्ट के लिए 3 घंटे 4 घंटे, ठीक है, एंड देन 15 दिन बाद आप टेस्ट दे रहे हो, in that sense you should take up GS की डेली आंसर राइटिंग, या फिर वो मे बी 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के आंसर राइटिंग, ठीक है. इफ यू आर टेकिंग लेट्स से GS की फुल लेंथ आंसर राइटिंग, हर 15 दिन में टेस्ट हो रहा है, देन आप ऑप्शनल की रोजाना वाली आंसर राइटिंग करो, या हर 2 दिन छोड़ के, इट कुड बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इट कुड बी सम क्वेश्चन ऑफ सम कोचिंग इंस्टीट्यूट या समवेयर जहां से भी आपने लेना है, राइट.
बट दोनों फुल लेंथ एक साथ मत ले लेना, राइट? इट इज नॉट मैनेजेबल एट ऑल, ठीक है ना? अनटिल अनलेस आप वो स्टूडेंट हो जो जिसने 3 इंटरव्यू दिए हुए हैं, ठीक है? और आपके नोट्स वोट्स सब तैयार है, आप सिर्फ उनको 2 दिन में रिवाइज करते हो और टेस्ट दे आते हो, 2 दिन में रिवाइज करते हो, टेस्ट दे आते हो, ठीक है? इसी सिनेरियो में ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये नहीं पॉसिबल है, राइट? डोंट गो फॉर 2 फुल लेंथ्स एट अ टाइम, राइट? अब एक क्वेश्चन ये आता है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? कि ठीक है, डेली आंसर राइटिंग करनी चाहिए एंड हमें रीडिंग्स भी करनी चाहिए, ठीक है? हाउ डू वी मेंटेन अ बैलेंस इन दिस, राइट? देखो, आइडियली आई वुड से अगर आप ऑप्शनल की आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो तो बैलेंस बनाया जा सकता है, और ऑप्शनल आप पढ़ रहे हो, ठीक है? क्योंकि दिस मीन्स कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो और एक उसी की आंसर राइटिंग कर रहे हो, बट इफ यू फील कि दिस इज नॉट डूएबल इन योर सिनेरियो, तो उसका मतलब एक ही है, बेसिकली उसके दो मतलब है कि या तो आप आंसर राइटिंग पे प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, ठीक है? इन दैट सिनेरियो तो आप तुरंत आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लो, राइट? क्योंकि यही एक चीज है जो आपको बचा सकती है, ठीक है? अदर दूसरा मतलब ये हो सकता है कि यू आर शॉर्ट ऑन योर कंटेंट, राइट? कंटेंट से मेरा मतलब है आपकी रीडिंग्स अभी प्रॉपर, ठीक है? तो मे बी आप इस डेली की जगह व्हाट यू कैन गो फॉर कि आप थोड़ी गैप वाली आंसर राइटिंग कर, राइट? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट इन माय ओपिनियन दिस इज मैनेजेबल, राइट? एक टॉपिक पढ़ा, आंसर राइटिंग कर ली, अगला पढ़ा, आंसर राइटिंग कर ली, बट यस, ये हैपोजेट कब होता है? जब वो डिफाइंड नहीं है। किसी दिन पॉलिटी का लक्ष्मीकांत पकड़ ली, किसी दिन गवर्नेंस पकड़ ली, तब ये हैपोजेट होता है, एंड दिस इज वेयर द ऑनलाइन जो जो थोड़े से फ्री वाले इनिशिएटिव्स है, राइट? ये यहाँ पर हमें नुकसान होता है, राइट? क्योंकि वहां पर क्या है ना, कुछ प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता है। आपको हो सकता है कल सिक्योरिटी का क्वेश्चन मिल जाएगा, परसों गवर्नेंस का मिल जाएगा, एंड यू आर जस्ट सिटिंग देयर राइटिंग एंड होपिंग कि यू आर मेकिंग सम इम्प्रूवमेंट, राइट? इन द लॉन्ग रन द इम्प्रूवमेंट नेवर हैपेंस, राइट? क्योंकि अ वीक डाउन द लाइन यू थिंक यार करा क्या है मैंने, अ, मैंने 2 आंसर सिक्योरिटी के लिए लिख लिए, लेकिन मुझे पता तो है नहीं कि मैंने नक्सलिज्म क्या है, ठीक है? दिस इज वेयर दिस डेली आंसर राइटिंग इज अ कर्स, राइट? इज अ बेन, राइट? इट इज अ boon when you follow it with a proper schedule कि ठीक है, आज मुझे पॉलिटी के फलाने चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है? आज मुझे पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर कवर करना है। हो सकता है मेरे पास 10 टॉपिक है कवर करने को, मैं 7 ही कर पाया, राइट? मैं 7 तो कर गया, मुझे पता है मेरे 3 रहते हैं, राइट? whenever I'll get time I'll complete those 3 topics, right? but yes, वो 7 मैंने पढ़े, ठीक है? अच्छे से, और उनके बेसिस पर I've done the answer writing, ठीक है? नेक्स्ट चीज, नोट्स। देखो, अनटिल अनलेस आपने 2 बार चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, यू हैव गॉट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थिंग्स, नोट्स मत बनाना, राइट? अदरवाइज वही सेम चीज बना लोगे आप नोट्स में, राइट? सो इन माय ओपिनियन द द फ्लो शुड बी कि आप रीडिंग कर रहे हो, देन आप रीडिंग कर रहे हो, देन आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, देन आप आंसर राइटिंग को रिव्यू कर रहे हो, ठीक है? अगर आप ये वाला प्रोसेस ठीक तरीके से, राइट, बिलीव मी, अगर आप ये जनवरी तक कर पाए, राइट, देन जो नोट मेकिंग है ना आफ्टर प्रीलिम्स, वो एक बड़ा सिनेरियो नहीं रहता है, राइट? क्योंकि आपको कंटेक्स्ट पता है, आपने आंसर राइटिंग अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली है। नाउ द ओनली जॉब आफ्टर प्रीलिम्स रिमेन्स कि आपको नोट्स कंसोलिडेशन करना है। पैरेलली आपके ऑप्शनल तो सही से चल ही रहा है, राइट? उसमें तो आप यू आर वेरी वेल इन दैट थिंग। तो डू नॉट गो फॉर कि एक सब्जेक्ट पकड़ा, ठीक है, बस एक ही रीडिंग की थी, अब उसके नोट्स बनाने बैठ गए, राइट? ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि मोर और लेस अगर ये सब्जेक्ट में 100 पेजेस हैं तो आपके नोट्स ही 80 पेज के बन जाएंगे, राइट? दिस इज नॉट व्हाट यू वांट फ्रॉम योर नोट्स, राइट? सो इफ यू आर comfort, I'll say in a nutshell, just a second.
in a nutshell. अगर जीएस कभी देखा नहीं है, ऑप्शनल कभी देखा नहीं है, don't go for this attempt, right? No. 24 will be your attempt, right? ऑप्शनल ठीक है, जीएस ओके है, गो फॉर अटेम्प्ट। जीएस ठीक है, ऑप्शनल या तो ओके है या स्टार्ट करना है, यू कैन गो फॉर अटेम्प्ट, राइट? प्रोवाइडेड you work very hard in next 4-5 months, right? Possible है, someone was asking ना, ये possible है नहीं, ये situation है, और if you are ready to work hard in next 4-5 months possible है, right? इस situation में 100% possible है, इस situation में बिल्कुल possible नहीं है, कोई आपको कुछ भी कहे, right? एंड इसका मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया हाउ यू नीड टू बैलेंस। इफ ऑप्शनल कंफर्टेबल हो आप, तो जीएस को आंसर राइटिंग भी करो, रीडिंग भी करो। अगर ऑप्शनल बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं हो, तो देन यू कैन कंसिडर कि शुड आई गो फॉर आंसर राइटिंग राइट नाउ और शुड आई नॉट गो फॉर आंसर राइटिंग नाउ। इन माय केस, अगर इन माय केस आप रोजाना के 2 आंसर लिख सकते हो, और या फिर हर 2 दिन छोड़ के 3 आंसर लिख सकते हो, ठीक है? नॉट अ बिग डील, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आंसर राइटिंग वाली ग्रूव में आना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप, हाँ, एक जो मैं कहना था चीज, इम्पोर्टेंट चीज, 2 चीजें इम्पोर्टेंट है अभी। एक तो है नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर। देखो, इसमें से सवाल आए ना आए, मैगजीन्स आपके पास आए ना आए, ठीक है? मैगजीन से आप तैयारी करते हो नहीं करते हो, न्यूज़पेपर डू रीड, राइट? 30-35 मिनट्स से लेके 60 मिनट्स के बीच यू शुड रीड न्यूज़पेपर, राइट? इसके कई कारण है। एक तो जो अभी मान लो जिनका मेंस जिन्होंने दिया है, ऑफ कोर्स वो तो पढ़ेंगे ही फॉर इंटरव्यू। एक ऑफ कोर्स आपकी मेंस की तैयारी के लिए जरूरी है, यू नो, डेली 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 कुछ कुछ डालने से यू गेट मच बेटर इंसाइट्स, मच बेटर ingrain होती है वो चीज, rather than gulping it all down in the end, at the end, right? Then एक और जो important component आ गया है with newspaper, which I feel has become important in last 2 years, that is prelims वाला component. I'm not saying बहुत बड़ा है, लेकिन है, right? और ये बहुत आई एम नॉट सेइंग ये सिग्निफिकेंट है और इसी के कारण आपको प्रीलिम्स, मतलब इसी के कारण आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, दिस इज नॉट द प्राइमरी एम। बट व्हाट आई एम सेइंग कि न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त, जैसे मान लो बिस्फेनॉल ए है, राइट? और क्या, ट्राइक्लोसैन है, राइट? ग्रीन वॉशिंग है, ठीक है? इस टाइप की जो की टर्म्स है ना, ये कभी कभी हमें न्यूज़पेपर में दिख जाती है। जैसे मान लो इस बार आईआर में उल्टी सीधी वो पूछे थे कि साउथ सुडान में क्या चल रहा है, टंजानिया में क्या चल रहा है, ठीक है? इट इज ओनली व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर ना, कि आप चीज को चीजें पता चलती है, एंड व्हेन यू आर रीडिंग इट ना, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। देखो, ट्राइक्लोसाइन वगैरह तो लिख सकते हो, लेकिन टंजानिया के पीएम का हो रहा है कि उसके पीएम का, बस आपने पढ़ लिया, ठीक है, वो दिमाग में ना कहीं सबकॉन्शियस में चला गया, ठीक है? देयर आर हायर चांसेस यू विल बी एबल टू रिटेन इट इन द एग्जाम। अगेन सेइंग कि न्यूज़पेपर पढ़ने का, दिस इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बट दिस कैन हेल्प यू, राइट? व्हाट आई वुड सजेस्ट कि न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त ना, मान लो ये ट्राइक्लोसान, पेट, बिस्फेनॉल ए और ये सब टाइप ना आपको कुछ नए कीवर्ड्स मिल रहे हैं, बट आई विल सजेस्ट हैव अ शीट रेडी विद यू, ये कीवर्ड्स लिखते रहो, राइट? मान लो इस दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, 4 ऐसे कीवर्ड्स दिख गए, अगले दिन 2 दिख गए, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ 40-50 कीवर्ड हो गए इकट्ठे, राइट? अभी भी मत सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट कीप योर लिस्ट रेडी विद यू,
राइट, ताकि जब कोर प्रीलिम्स प्रिपरेशन में जाओ, बी इट मिड जैन, बी इट स्टार्टिंग ऑफ फेब, बी इट मिड फेब, राइट, you can sit down for 1 day, 2 days, 3 days and just google it all out, right? there are chances शायद उसमें से एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल निकला है, राइट? अगर न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हो, why not take that extra added advantage, right? and this I am saying is क्योंकि there are chances कि ये शायद कोचिंग मैगजीन्स मिस कर जाए, राइट? अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द चीजें वो कवर कर देती है। अगर वो यूपीएससी ने बिल्कुल ही आड़ा टेढ़ा पूछना है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, बट अगर वो न्यूज़पेपर में से आ रहा है और वो वो छुपा हुआ है कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में, जो कोचिंग मैगजीन मिस कर गई, शायद आप देख लोगे उसको, और अगर आपने वो लिस्ट बनाई हुई है, शायद यू विल गेट एन एडवांटेज, राइट? अगेन आई एम सेइंग, शायद पे चलता है सब कुछ, रिलेटिव है, हो जाएगा शायद, एंड इसी यही गेम है, 2 नंबर 4 नंबर इधर उधर एंड यू गेट थ्रू, राइट? तो न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कुछ लोग हैं जिनकी प्री की प्रिपरेशन ही इन शैम्बल्स है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है, राइट, कि भाई मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा, आई कैन नॉट वेट मे बी टिल फेब for my prelims preparation to start, I need to do something before it, right? In that scenario I would say कि maybe after Diwali or maybe from November and slowly start integrating your prelims preparation into your mains preparation, ठीक है? It could be 70-30, it could be 80-20, right? मान लो कोई आपको ऐसे किताब लग रही है जो पिछली बार पढ़नी थी आपको बट वो रह गई है, राइट? वो पढ़ लो प्रीलिम्स वाली, ठीक है? मान लो यू गेट सम गुड टेस्ट सीरीज जो कि आपके प्रिपरेशन को, प्रीलिम्स वाली प्रिपरेशन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से पेस कर देगी, यू कैन जॉइन दैट थिंग। या मान लो यू आर जस्ट थिंकिंग कि यार ठीक है, मे बी अगले 1-1.5 महीने में ना सारे पीवाईक्यूज और उसकी रिसर्च कर लेता हूँ, राइट? यू कैन डू दैट थिंग, या वट एवर, राइट? तो 20% आप काम कर सकते हो प्रीलिम्स पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स का फियर या फिर प्रीलिम्स के अराउंड जो डर है वो अनफाउंडेड है, राइट? ऐसा नहीं है, बट द थिंग इज कि वी नीड टू पेस दैट थिंग, राइट? देखो एक ही चीज है कि देयर इज ओनली वन सिन विच यू कैन कमिट राइट नाउ, राइट? इफ यू आर अटेम्प्टिंग 2023, दैट इज वेस्टिंग एंड मिसयूटिलाइजिंग दीज मंथ्स, राइट? मिसयूटिलाइजेशन का मेरा मतलब है कि मेंस को इग्नोर कर दिया कंप्लीटली, राइट? देखो अक्टूबर है, एवरीवन नोज, ठीक है? थोड़ा फेस्टिवल वगैरह वाला रहेगा, तो एंजॉय भी करो, वो भी जरूरी है, बट डू नॉट कंप्लीटली इग्नोर योर स्टडीज, राइट? इट कुड बी अगर आप नवंबर में 100 पढ़ रहे हो, इन अक्टूबर यू कैन जस्ट मे बी ट्रिम इट डाउन टू 90 और 85, राइट? ऐसा ना हो कि ये उठ के आ गया 30 पे, राइट? दैट सिनेरियो आपने अक्टूबर वेस्ट कर दिया, आपने एक क्रूशियल महीना वेस्ट कर दिया, राइट? जहां पर यू could have taken an edge over your competitor, but you lost the edge, right? And the important thing is, right? So मोटा मोटा यही कहना था मुझे, राइट? अगर किसी को कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो, राइट? Anyone having any doubt? Even well, sir, is there anything more on the strategy part? More or less done from my side. If anyone Okay. has any questions, they can ask. Okay, I will ask you to just explain the brief of the question, the course that you will be having. Okay, so that afterwards we will be having some questions from them. Okay, fine. So, first part of the agenda was to just guide you as to how you should pace your preparation, right? Next is how SOMP, at SOMP we can help you, right? See, as I told you, this is mains time. My overall discussion in this session was this is mains time, right? Number one,
Again, there are those who are struggling on the content part. We have thematic course, right, where you can get consolidated GS1, 2, 3 notes, right? These are the notes which are most recently updated for mains 22 students, right? And those who, if you need these notes, right, there are samples available on the channel, right? You can see them, and you can get those if you feel they are for you, right? They will also get access to 2023 notes, which will be available after 23 prelims, right? Many of the questions of GS 1 to 3, they were solvable. I mean, I would say around 70-80% questions from GS 1 to 3, they were solvable from uh, these thematic notes, right? You can check it out on the channel as well, right? Just a second, just a second. Yes. So if you feel you are struggling on the part of content, right, I think thematic can help you because it has helped students in 21. It has helped students in 22, right? If you feel you have content with you, you do not need to go anywhere. Just trust your content, right? If you feel if you want answer writing, it could be in three ways, right? Again, it could be daily, right, where you are preparing one topic at a day. Let's say you are just preparing budgeting, let's say you are just preparing inclusive growth, right? You prepare that topic during the day and you write answers on that topic, right? Of course there will be certain topics, okay, let's say the topic of infrastructure, maybe you're not able to prepare it completely, right? But at least you will be able to do 70% of that, 80% of that, right? And then whatever remains ना, you will have an idea कि okay ये मेरा बचा हुआ है, ठीक है, इसको मैं कर लूंगा बाद में. This is way better than not doing the things, right? Because अगर आपने ऐसे छोड़ दिया and you are not conscious of your preparation ना, believe me, ये कब अक्टूबर फेब बन जाएगा, you will not even get an idea, ठीक है? And then you will get back to your senses in again जून कि नहीं नहीं मेरा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बचा हुआ है, मेरा तो बजटिंग बचा हुआ है, ठीक है? If you feel you can do it on your own, do it, right? Make a day wise schedule कि ठीक है आज मुझे बजटिंग करना है, आज मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, आज मुझे पॉलिटी का ये वाला चैप्टर करना है, ठीक है? इसके आंसर लिखें. And then another could be कि you are going it in gaps, right? Which is basically the hurricane program, right? कि ठीक है आप 3-4 दिन आपने मॉडर्न हिस्ट्री तैयार किया, ठीक है? देन आप मॉडर्न हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन एक साथ लिख रहे हो, राइट? देन अनदर वुड बी कि आप फुल लेंथ टाइप आंसर राइटिंग लिख रहे हो, ठीक है? पर्सनली आई वुड से कि इफ यू आर नॉट द वन जो कि जिसने पहले आंसर्स लिखे हुए हैं, या फिर यू आर नॉट श्योर कि आपके आंसर्स अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, आई विल से कि गो फॉर डेली वाली थिंग, राइट? फुल लेंथ आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा फ्लॉ ही ये है कि वो 15-15 दिन बाद टेस्ट होते हैं, राइट? तब और उसकी इवैल्यूएशन आती है 10 दिन बाद, ठीक है? तब तक अगला टेस्ट आ चुका होता है, ठीक है? और उसमें क्योंकि आपको 3 घंटे में टेस्ट खत्म करना है, राइट? यू आर ऑलवेज अंडर दैट प्रेशर एंड सिचुएशन कि भाई मुझे तो 3 घंटे में लिखना है, नो मैटर मेरी क्वालिटी कैसी है आंसर की, राइट? तो आई विल से कि इफ यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट जिसने कि पहले आंसर राइटिंग अच्छे क्वांटिटी में की हुई है, क्वालिटी में की हुई है, फुल लेंथ भी लगाए हुए हैं, वो फुल लेंथ के लिए जा सकता है. इफ यू आर दैट स्टूडेंट कि जिसको डाउट है कि मेरे आंसर शायद अच्छे नहीं है अभी, या मैंने अभी का ये आंसर राइटिंग की ही नहीं है, आई विल से गो फॉर डेली आंसर राइटिंग और एट मैक्स आंसर राइटिंग विद सम गैप, राइट? डेली वाले वो लोग होंगे जिनको रोजाना एक टॉपिक तैयार करना है, उस टॉपिक पे उन्हें 2 आंसर 3 आंसर लिख देने हैं, ठीक है?
गैप वाले वो लोग होंगे जिनको एक सब्जेक्ट तैयार करना है। मान लो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए 3 दिन मिले, एंड 3 दिन मिले, आपने उसके बाद 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन लिख दिए, राइट। सो डेली वाले में इट्स लाइक यू आर गिवन वन टॉपिक, ठीक है, शेड्यूल इज शेयर्ड ऑन द चैनल, आई शेयर द पीडीएफ्स अगेन, राइट। वन टॉपिक यू आर गिवन, राइट, एंड यू आप पूरे दिन में कभी भी आप उसको सबमिट कर सकते हो, राइट। और इससे पहले यू आर हैविंग गाइडेंस सेशंस एज वेल, राइट। लाइक कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट है, जेन्युइन डाउट ये है कि भाई इसको कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे, राइट, हाउ विल वी ऑर्गेनाइज दिस प्रिपरेशन ऑफ द नेक्स्ट 4 मंथ। तो इसीलिए गाइडेंस सेशन है। मान लो दिस प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे, राइट, विल बी हैविंग फर्स्ट सेशन ऑन मंडे, राइट, कि एथिक्स को कैसे आपको हाउ यू नीड टू अप्रोच, कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, उसकी क्या डिमांड है, यू नो व्हाट इज द मोस्ट ऑप्टिमम वे इन व्हिच यू कैन अप्रोच दिस टॉपिक। सिमिलर गोस फॉर अदर सब्जेक्ट्स। मान लो केस स्टडी का सेशन होगा, हिस्ट्री कैसे करनी है, पॉलिटी कैसे करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पता नहीं है, आई एम सेइंग कि बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है कि आपका ये 4 महीने सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज हो, और आप जनवरी एंड में आप रिफ्लेक्ट करो कि हाँ मैंने 200-250 आंसर लिख लिए हैं, राइट। तो एक है गाइडेंस सेशन, देन यू विल राइटिंग डेली, प्लस हमारा रिविजन टेस्ट है, राइट। रिविजन टेस्ट होगा ऑन सैटरडे, ठीक है। देखो डेली वाले में मंडे टू फ्राइडे यू आर हैविंग नो बाउंड्स ऑफ टाइम, राइट। इसलिए क्योंकि आप 3 क्वेश्चन भी अगर आप 1 घंटे में लिखते हो, नो इश्यूज, राइट, क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी, ठीक है, कि आप अच्छे आंसर लिखो, सोच कर लिखो कि ओके ठीक है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ऑन सैटरडे देयर विल बी रिवीजन टेस्ट, जिसमें आप विल बी रिक्वायर्ड टू राइट 7 क्वेश्चंस इन 1 आवर, राइट। इसमें चाहे आप कैसा भी आंसर लिखो, आपको 7 क्वेश्चन खत्म करने हैं 1 घंटे के अंदर, राइट। धीरे धीरे व्हाट यू विल सी कि आपकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है और आप टाइम में भी लिख पा रहे हो, राइट। सो डेली आंसर राइटिंग वाला प्रोग्राम इज दिस, where you have Monday to Friday you can write 3 questions based on the topic given for that day. मंडे टू फ्राइडे को खत्म होगा, देन वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिवीजन टेस्ट हो जाएगा सैटरडे को, राइट। संडे को नेक्स्ट गाइडेंस सेशन होगा, ठीक है। मान लो आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक मेरा खत्म नहीं हुआ, यू जस्ट मेंटेन अ लॉग बुक, राइट, कि ठीक है ये मेरा खत्म नहीं हुआ, देयर इज नो नीड टू टेक स्ट्रेस, सबका नहीं होता है। अगर आप 80% भी अचीव कर लोगे ना इस प्रोग्राम से जो इसमें दिया गया है, राइट, यू आर वेरी वेल गुड टू गो, राइट। देन ये प्रोग्राम ये खत्म होता है जनवरी में, राइट। उसके बाद यू स्टिल हैव 10-15 days टू कवर दैट बैकलॉग। मान लो आप 5-6 दिन के आंसर नहीं लिख पाए, ठीक है, नो वरीज, 7 दिन के नहीं लिख पाए, नो वरीज, बैठो पढ़ो उसको लिखो, राइट। आई एम सेइंग दिस इज वे बेटर, दिस इज वे मोर प्रोडक्टिव एंड वे मोर रिवॉर्डिंग देन नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट। एंड और जस्ट थिंकिंग कि ठीक है पढ़ लूंगा हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ पढ़ लेता हूँ, मेंस के बाद कर लूंगा, फुल लेंथ लिख लेता हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम इज just a second. Next is Hurricane. Hurricane is with the gaps, right? You prepare modern history, you write questions on it, and this is live, right? आप Zoom पर बैठोगे, उस 1 घंटे में ही आप क्वेश्चन लिख दोगे. So it could be 3 questions in a week, it could be 5 in a week, it could be 7 in a week, or it could be just 7 in a week, right? So we have 2 models here, 3, 5, 7, where for few weeks you will write 3 questions in our, where next few weeks you'll write 5, next few weeks you'll write 7, or you have another model 7, 7, 7, 7, where each particular subject you are required to write 7, 7, 7, 7 questions, right. Then the third I've told you, full length answer writing, right. This is only you should join when you are decently comfortable कि मेरी quality of answers ठीक है, right, and मेरे को incremental improvement जैसी कोई चीज की requirement नहीं है. I just need to see whether I am able to fit the overall things in this 3 hour scenario, right. तो आप full length join करो, ठीक है. तो I hope I have cleared myself. Hello. Yes, hi. Yeah. Yeah, hi, sir.
सर मेरा ना क्या बोलते हैं, मैंने जीएस के तो मेंस भी लिखे हैं और मेरा स्कोर समवेयर 380 के आसपास रहता है, लेकिन हाँ इस हाँ। साल फिर मैंने मेंस दिया नहीं है। अब मैं अपना हम्म, ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ। पहले मेरा ऑप्शन मैथ्स था, अब मैं सोशियोलॉजी के साथ जा रहा हूँ। और मैंने अभी तक सोशियोलॉजी छुआ नहीं है बिल्कुल भी। एक ऐसी रीडिंग मारी थी सांगवान की, लेकिन बस वो ऐसे ही है सर, 3-4 महीने पहले मारी थी, फिर मैं अब जॉब में हूँ। मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहता, मतलब 4-5 घंटे निकल जाते हैं दिन के। तो मेरे को आंसर राइटिंग करनी चाहिए या फिर अभी सिर्फ ऑप्शन पे फोकस करना चाहिए? you are in your job currently, right? यस सर। और So I जीएस can का manage hardly 5-6 hours, sir. That too if I push harder. हम्म। देखो, जीएस का योर स्कोर समवेयर शोज कि यू नो 380 390 इज नॉट अ बैड स्कोर, राइट? वो अच्छा Okay. स्कोर है, बट ये है कि वही वो 420 430 के आसपास नहीं है, ठीक हाँ है? सर। और सोशोलॉजी ऑफ चेंज तो अनडाउटेडली अगर आपके पास 5-6 घंटे हैं तो उसमें से शायद 4 घंटे तो आपके सोशोलॉजी पे जाएंगे, राइट? हाँ सर। आई विल से कि आप वीकली टाइप आंसर राइटिंग कुछ कर सकते हैं। आप या तो डेली के 1 घंटा आंसर राइटिंग कर ले, ठीक है? या फिर आप उस 1 घंटा में जीएस, उस 1-2 1.5 घंटे में जीएस पढ़ ले एंड वीकली कोई आंसर राइटिंग कर ले, क्योंकि क्योंकि आप 380 पर है ना, राइट? दैट समवेयर शोज कि शायद आपके आंसर में ना वो बस थोड़ी सी क्वालिटी वाला इशू है, राइट? या तो आप पेपर छोड़कर आ रहे हैं, मे बी नहीं एक सर, पेपर क्वेश्चन नहीं छूट छोड़ता गया। हूँ मैं। नहीं, पेपर नहीं हाँ, छोड़ता हूँ सर, कुछ भी हो जाए। फिर इसका मतलब है कि कहीं ना जहाँ आपको 6 मिल जाने चाहिए थे ना, आपको शायद 5 मिल रहे हैं बस, ठीक है? या आपको जहाँ 3 मिलने चाहिए थे आपको 2 मिल रहे हैं, इतना ही फर्क है वो, ठीक है? वो इन माय ओपिनियन ना वो फुल लेंथ आंसर राइटिंग से करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है? वो डेली आंसर राइटिंग से ही करेक्ट हो सकता है। आई थिंक व्हाट यू कैन गो फॉर इट, आई थिंक बेटर आपके लिए रहेगा कि आप सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन करते रहें एंड हरिकेन को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि गैप्स में है, राइट? कि आपने तैयार किया कुछ कंपोनेंट, देन यू राइट द आंसर्स, तैयार किया, देन यू राइट द आंसर्स, क्योंकि देखो आंसर लिखोगे तो इंक्रीमेंटली यू विल इम्प्रूव एंड देन यू विल कम टू नो कि अच्छा ये मेरा गलत था, ये मेरा गलत, ये मेरा सही है। एंड दिस इज हाउ यू 380 से आप 390, 390 से 400, क्योंकि आपका गैप ना बहुत छोटा गैप है लेकिन सिग्निफिकेंट गैप है। वो 380 टू 420 वाला गैप ही वही होता है कि क्वालिटी का इशू है कहीं ना कहीं। आई थिंक ओके। वो डेली आंसर राइटिंग जरूरी है ताकि आप उसको ना मेन से पहले एड्रेस आइडेंटिफाई कर लो, एंड ताकि एटलीस्ट आइडेंटिफाई हो गया तो एड्रेस कर पाओगे उसको। अदरवाइज क्या है कि फिर फेब एंड तक पता चला वो भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, फिर आपको वो प्री के बाद मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक गैप्स के साथ आप आंसर राइटिंग कर सकते हो या वीकली आप आंसर राइटिंग कर सकते ओके सर, थैंक यू। हो। वेलकम। Yes, am I audible? यस यू आर ऑडिबल। Yeah, hi. मेरा भी हाय। सिमिलर सा क्वेश्चन है। मेरी भी जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे उन्होंने, मेरा भी सिचुएशन सेम ही है। स्कोर्स भी लगभग सेम थे और मेरा जो ऑप्शनल था पबैड, उसमें मेरा स्कोर प्लेट्यू कर गया, कुछ 260 क्रॉस नहीं हुआ मल्टीपल मेंस में। तो मैं भी ऑप्शनल स्विच करने का सोच रहा हूँ। तो इज इट एडवाइजेबल एट दिस स्टेज? क्योंकि मैंने मेरा लास्ट अटेम्प्ट 2020 था। उसके बाद मैंने पिछला वाला अटेम्प्ट भी नहीं दिया है। अब नेक्स्ट मैं प्लान कर रहा हूँ। देखो इट विल डिपेंड कि 2020 लास्ट अटेम्प्ट था तो उसके बाद वर यू इन द प्रोसेस, राइट? कि आप पढ़ते रहे हो या चीजों को नहीं पढ़ते रहे हो। आई वॉजेंट, क्योंकि मेरी भी जॉब लग गई थी तो मैंने छोड़ दिया। आई थिंक मे बी यू नीड टू रिकंसिडर। अगर आप ऑप्शनल चेंज कर रहे हो, ठीक है, और आप प्रोसेस में नहीं हो, तो शायद आप थोड़ा सा सोचें इसको। ऑप्शनल कौन सा लेना उस पर बहुत डिपेंड करेगा, राइट? इफ इट इज एन ऑप्शन विच कैन बी कंप्लीटेड, ठीक है। अब आपका स्कोर क्या रहा है पहले जीएस और ऑप्शनल? जीएस में, क्योंकि ऑप्शनल तो आप बदल रहे हैं। जीएस में भी 370 380 यही जा रहा है। देखो इट विल डिपेंड ऑन ऑप्शन और एंड यू आर वर्किंग, राइट? यस। और मेरा आई ऑप्शनल थिंक जो मैं प्लान कर रहा हूँ पीएसआईआर कर रहा हूँ। मेरा पहले पबैड था और पीएसआईआर थोड़ा लेंथी ही है, 4.5 मंथ्स लगते हैं आसान से। अगेन आई विल से सिमिलर सिचुएशन है जो लास्ट वाले जी स्टूडेंट की जी थी, जी। है ना? कि आप इसको डेडिकेटेडली 4 घंटा 4.5 घंटा प्रिपेयर करें पीएसआईआर को, एंड जो 1-1.5 घंटा बचता है उसमें या तो आप रीडिंग्स करें, ठीक है, जीएस की, और वीकली आंसर राइटिंग करें, या फिर
हर चौथे दिन आंसर राइटिंग करें, ठीक है, या फिर डेली आप कुछ कुछ पढ़ के आंसर राइटिंग करें। आई विल से कि वही लास्ट वाला सही है कि आप गैप्स में आंसर राइटिंग करें। यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि अभी स्टिल 4 महीने है, राइट, एंड सिंस यू हैव रिटन मेंस, इसका मतलब है कि आपको प्रीलिम्स क्लियर करना आता है, राइट, सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट आई विल से कि टाइम लगेगा, मतलब टाइम नहीं, एफर्ट लगेगा इसमें, राइट। तो आप 4-5 घंटे निकाल लें ऑप्शनल के लिए, एंड 1-1.5 घंटा जीएस का, एंड देन सैटरडे संडे को 5-6 घंटे जीएस के लिए, एंड देन ग्रेजुअली जैसे जैसे ऑप्शन खत्म होता जाएगा थोड़ा सा जीएस को बढ़ा देना। Well, sir, do I it. would like to chip in since he is from the PubMed background, so my emotions cannot resist me to keep mum. Okay, sorry to cut you in between. Sure. Okay, so Aban, since you are from the public administration Yes. and in 2020 you have given your last attempt with the public administration, correct? राइट, वो वाला मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। 2019 लास्ट मैंने इंटरव्यू दिया था। Okay, fine, it is. So अमन, अगर यार मैं यहाँ पे कहूँगा टोटल कितने अटेम्प्ट्स हो गए अभी आपके? मेरे 5 हो गए। ये लास्ट अटेम्प्ट है जी। So I will not suggest you to change the optional. ओके। Okay, I will tell you why. So when you said that you are scoring somewhere at 260s and all, since last 3 years, if you observe, ये plateau सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है. It is almost similar for every subject. क्या आपको पिछली मतलब जो हमने 2090s में या 18 या 17 में जैसे हमने सुन लिया था कि 300 प्लस ऑप्शनल, जैसे सोशियोलॉजी में आ गया, एंथ्रोपोलॉजी में 300 प्लस काफी लोगों का आ गए, क्या आपको ऐसे मार्क्स देखने को मिल रहे हैं अगर आपने बाकी सब्जेक्ट्स भी देखे हैं? जी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए स्विच का सोच रहा था जी। नहीं, बाकियों में भी तो नहीं मिल रहे हैं ना, मेरा कहने का मतलब ये है। ओके। तो अगर ये आपको लग रहा है प्लेटू सिर्फ आपके साथ हुआ है तो दिस इज नॉट करेक्ट। सेकंड थिंग, 260s कांस्टेंट रहे हैं या 220s में भी गए हैं? आई एम बीइंग वेरी ब्लंट एंड क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। 250 260s रहे हैं या 220s भी गया है? नहीं, मेरा 2 बार 257 258 आया और एक बार जो है वो 4 बार मेंस दिया मैंने। एक फर्स्ट टाइम तो काफी कम था, 200 से भी कम था, उसके बाद 257 आया है, 258 आया है और एक बार कुछ 240s की रेंज में था। So still it means that you are scoring a kind of average marks, or I will say above average marks. क्योंकि 2019, 2020, 2021, whatever I have analyzed in my mentorship career, that इसमें ये स्कोर के साथ बच्चे रैंक लाए हैं, करेक्ट? यस। ऐसा तो नहीं है ना कि रैंक नहीं आ रही 250s और 260s में स्कोर करने के बाद? यस यस। और ऐसा भी नहीं है कि काफी ज्यादा किसी दूसरे ऑप्शंस में 300 प्लस स्कोर आ रहा है। जी। Now you have invested 5+ years of yours. जी जी। Do you think it is advisable कि आप option switch कर लो and you are going to appear in 2023, I guess? यस यस आई एम। और 2023 में आप करना चाहते हैं PSIR के साथ? वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं पूछना चाहता था मैं क्या करूं। हाँ, that's why like can totally understand your query. Okay, first of all, had it been the score of 220 or something, I would have said that you literally do not know and have the in-depth understanding of the public administration, but it is not true. Your scores has a consistency and above average consistency. I'm not saying that these are the exceptional scores. 10-20 more marks, it's a good score. 30 plus marks, it is exceptional scores, because we are not getting 300 even other GS papers right now. Yes. So my suggestion will be, you have toiled hard for last 3-4 years in the public administration. It's better to stick to the basics. Okay. Go for the previous year questions. I am 100% sure that you have not done this. Have you? No, maybe I have not. Stick to the previous year questions. Go for the way Sahil sir talked about the thematics in the GS. Similarly, you will find the themes in your respective optionals. Yes. Okay, you will find that particular need. कि यार ये particular theme से governance अच्छा ठीक है. If you look, public policy last 4 साल से 50 marks दे के जा रहा है, correct? Yes. So it is 110% 2 के public policy देगा. Yes. अब public policy एक छोटा सा part है अपने public administration का. जी. ऐसा भी नहीं है कि we have to go very deep. ठीक है?
मैं ये कहूंगा गो फॉर द बेसिक्स, ठीक है। जब बेसिक्स मतलब व्हेन आई से कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तो हमें इंप्रूवमेंट लानी है। इट इज नॉट लाइक दैट वी हैव टू मैक्सिमाइज समथिंग, अ माइनर इंप्रूवमेंट इन एवरी क्वेश्चन विल फेच यू आंसर्स। गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। समटाइम्स यू विल फाइंड व्हाइल एनालाइजिंग दीस क्वेश्चंस दैट नेक्स्ट ईयर्स क्वेश्चन इज क्वाइट ऑब्वियस ओवर देयर, ठीक है, कि मतलब साफ पता लग रहा है कि ये पिछले साल से ही घूम के आया है, कुछ बना दिया इन्होंने। जो नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन आया वो 1980s में मिल गया या 1990s में मिल गया, कहीं ना कहीं वो मिल गया घूम फिर के। जी, तो गो फॉर इट, डोंट राइट होल आंसर, जस्ट राइट द पॉइंटर्स ओके, एंड दिस विल बी नथिंग बट अ काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स फॉर यू। एंड बिलीव मी, इतना करोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिजल्ट दे देगा। ठीक है, So I will not suggest you to change optional at this juncture of time. sure, I understood. Fine? Yes. Okay. So what should be my strategy, integrated strategy, prelims, mains, optional going forward? Okay. Two things I always suggest to everyone, those who are coming back with a break. Okay, जब आप ब्रेक से वापस अच्छा, एक रिक्वेस्ट है यार, जो यहाँ पे, इफ टाइम परमिट्स, बैंडविड्थ परमिट्स एंड इफ यू वांट, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। यार मुझे ब्लैंक स्क्रीन के साथ बात करते हुए थोड़ा अजीब सा लगता है। हार्दिक थैंक यू यार, मतलब बिना बोले तूने कर रखा दोस्त, है ना। सो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग दैट यार, फर्स्ट वी आर इन द मिड ऑफ अक्टूबर इज ऑलमोस्ट गोन, बिकॉज नेक्स्ट वीक के बाद दिवाली दिखेगी सबको, ठीक है। सब घर जाएंगे, वो 10-15 दिन का गैप सबका आएगा। कोई ऐसा नहीं है जो दिवाली छूट जाएगी, सबके साथ होना है वो। तो व्हाट यू डू राइट नाउ, ऑप्शंस किए भी बहुत दिन हो गए हैं, अभी नहीं किया तो पक्का बाद में प्रीलिम्स के बाद ही करने को मिलेगा। योर फोकस शुड बी योर ऑप्शनल्स। जो मैंने पीवाईक्यू वाली बात बताई है ना, इसका थीमेटिक्स पकड़ के निकाल दो, कम से कम लास्ट 15-20 साल का निकाल दो, ठीक है। पबैट बहुत पुराना ऑप्शनल है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा यूपीएससी का पेपर, सब मिलेगा आर्काइव्स में, ठीक है। जी, और वरना विजार्ड की एक बुक आती है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज पॉइंटर दिया होगा, सारे दे रखे हैं उसमें, सब जी। मिल जाएगा उसमें, ठीक। ऑप्शनल्स अलोंग विद द जीएस आंसर राइटिंग, और मतलब एक ग्रुप ये हो गया, या ऑप्शनल एथिक्स एस्से, दूसरा ग्रुप ये हो गया। थर्ड ग्रुप हो जाता है हमारा ऑप्शनल अलोंग विद सर्टेन टॉपिक्स जहां पे आप वीक हो, एवरीवेयर। व्हेन आई से एवरीवेयर, इट लिटरली मींस कि आपने गवर्नेंस में वीक पाया खुद को, गवर्नेंस कर लिया। आपसे साइंस एंड टेक में पर्टिकुलरली स्पेस वाले क्वेश्चंस नहीं डील होते, वो कर लिया, ठीक है। तो वीक एरियाज आपने मेंस दे रखे हैं, यू नो दैट कहाँ हाथ कांपते हैं लिखने में, अबे इस एरिया से ना आ जाए। आर्ट एंड कल्चर में प्रॉब्लम है, उसके शॉर्ट नोट्स टाइप का तैयार करके वो एरिया निपटा दो। दैट विल बी माई सजेशन। तो 3 ग्रुप दे दिया है, दिस थिंग, इसमें से कोई भी एक ग्रुप उठा लो। ये आज अक्टूबर से चलेगा और जैन तक इसी मोड में रहना है। विद द लास्ट वीक ऑफ जैन और से मिड ऑफ फेब स्टार्ट ट्रांजिशन इनटू द प्रीलिम्स मोड, वो भी जरूरी है। गॉट इट? और एसएमपी का कौन सा मॉड्यूल मेरे लिए ज्यादा रेलेवेंट रहेगा? It totally depends on you. I have given you 3 options. If you are going for the option, देखो ऑप्शन तो तुम्हारे केस में कांस्टेंट है क्योंकि टाइम हो गया है। यस, अभी एसओएमपी जीएस में आपको हेल्प कर सकता है, तो आप डेली आंसर राइटिंग टाइप का, हरिकेन टाइप का भी कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टाइप से मोल्ड करना चाहते हो। सी, वी कैन गिव यू ऑप्शंस, जस्टिस आप किस में कर पाएंगे ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप वर्किंग कैंडिडेट हैं, डेली नहीं लिख पा रहे हैं, ऑल्टरनेट डेज पे चाहिए, क्या हरिकेन ज्यादा सूट कर रहा है, वो एक आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बट इन्हीं दोनों में से कुछ यू शुड ऑप्ट फॉर। ओके, थैंक यू। ठीक है, फाइन। सो एक क्वेश्चन, ओके, लेट मी हैव सम। Sahil sir, do you want to add something else? Else I will be taking some chat box questions. No, nothing. Okay, fine. सर कैन आई आस्क? हाँ बिल्कुल हार्दिक, बिल्कुल। सर आप कोई भी आंसर कर देना, आप या साहिल सर, इट हाँ, डजंट हाँ। मैटर। सर इट्स लाइक कि आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फ्रॉम द पास्ट 1 year. I have just completed my college now, मतलब in the June, and I am aiming for 2023. तो
सर जो स्टैटिक आई मीन जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक्स होते हैं लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक वगैरह, वो सब कर रखे हैं. इट्स जस्ट आई नीड अ रिवीजन ऑफ इट. एंड एज वेल एज अबाउट द मेन oriented topics like society, security, disaster management and all. I have not read the static part of them, but since I am reading newspaper from the past 1.5 year, तो उसके क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करता हूँ तो हो जाते हैं मेंस टाइप जो आंसर राइटिंग होती है. आई हैव ट्राइड एंड आई हैव गिवन सम फॉर इवैल्यूएशन एज वेल, तो आई स्कोर डिसेंट इन इट. बट सर still, so now I know, जैसा साहिल सर ने भी बताया कि I should now at this time focus on my optional and I must revise these GS topics. But sir, in the back of the mind, what I end up doing is कि अरे यार post independence नहीं हुआ, world history नहीं हुआ और ethics नहीं हुआ, तो I end up giving my time in all these topics जो अभी तक हुए नहीं है. इसमें revision भी नहीं होता है और optional भी कहीं ना कहीं back track हो जाता है. तो समझ नहीं आता सर इसमें क्या करूं. Okay. So first of all, like I think you misunderstood some points of Sahil sir. Sahil sir when said that you have to do this, Sahil sir was quite specific with the categories. When Sahil sir says that those who are prepared for the prelims, okay, those who are back and then again in prelims mode, you belong to that category. Since you have a very basic understanding of those books, the very basic books that helps in the prelims preparation, fine. But what about the rest of subjects? Disaster management, security, society, be it environmental, economics and all. Okay, means application part of GS2 and 3. Governance, it is there. This is right Yes, time. This is the right time to do. Okay. So in your case, what I will be suggesting, as I was quite specific with Aman as well, that you cannot leave optionals. Okay, this is the high time you cannot leave optionals at all. If someone Sure. is saying you to leave the optionals, don't listen to him. Optional along with the all main part of the syllabus. Because the part that you have studied, I'm taking back the words of Sahil sir. Okay, what Sahil sir has said, that after certain period of time, that is February onwards, mid-February, last week of Jan onwards, you have to be in prelims mode. Okay, Yes. you will be revising these subjects again and again. So, as Sahil sir said, for the prelims, 4 months of slogging, I use the word slogging, means prelims mode only. 4 months of prelims mode is sufficient enough if you have been guided enough. So, I'm not saying anything else what Sahil sir has not said. So it is like for you optionals, mains topics, nothing else till the January or the mid of Feb, and then onwards prelims mode transition. That's it. Okay, sir. And sir, one last thing. While writing essay or answer writing, कोई क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो मैं देखता हूँ and I know that I can write for it, तो मैं लिख लेता हूँ. But for some of the topics, I believe that I can write it, but in the back of the mind there is something like कि यार पहले पूरा सिलेबस हो जाए तो तू इसको फिर कॉम्प्रिहेंसिवली लिख सकते, तो अभी मत लिख, अभी इसको छोड़ दे. Okay, fine. तो okay, I will answer like I don't know if anyone of you attended my open sessions earlier on net. A popular quotation by me only. Okay, I'm going to be a big person nowadays. So I say in this examination, you're not going to attain perfection anytime soon. You will never attain perfection. So what is the biggest mistake every UPSC aspirant do? Okay, at one point of time, someone of us are able to break this inertia. Someone of us is not. The thing is that we try to attain a perfection. Okay, जब मैं सारे topics कर लूंगा तभी आंसर लिखूंगा. It will never happen. You start writing. It might be a case आपने जीएस सोसाइटी पूरी बुक पढ़ ली तब भी आप सोसाइटी का आंसर नहीं लिख पा रहे हैं. आपने लक्ष्मीकांत 10 बार पढ़ रखे तब भी पॉलिटी के क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है. तो इट डजंट मैटर. उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी आ गई, 3 और भी तो लिखे जो आपने खुद लिख लिए बिना किसी दिक्कत के. जिससे एक में दिक्कत आई गूगल कर लिया, उसके इंटरनेट पे देख लिए, 2-3 आर्टिकल पढ़ लिए, हो गया वो भी आंसर. बट वो जो 3 उसके अलावा भी लिख लिए जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बना, जिससे मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स ठीक हुई हैं. Even that is what required. When Sahil sir was talking about the daily answer writing, why we say that we need to write daily? This is the reason.
यार आप डेली लिख रहे हो, ठीक है, परफेक्शन के लिए थोड़ी लिख रहे हो, पहले आंसर राइटिंग स्किल्स के लिए लिख रहे हो, आपके धीरे धीरे इंप्रूवमेंट डेली आ रही है। अब आप उस एक क्वेश्चन को लिखने की वजह से, क्योंकि आपने देख लिया, आपको लगता है कि आप आंसर नहीं कर पाओगे, या परफेक्शन अटेन करने के बाद आंसर करोगे, वो परफेक्शन आएगा ही नहीं। आपने एक क्वेश्चन भी नहीं लिखा तो वो इनर्शिया ब्रेक नहीं हुआ। एंड इट हैपेंस विद एवरी वन ऑफ अस एट वन और सेकंड पॉइंट ऑफ टाइम। गॉट इट? Okay, sir. Thank you so much. Fine. So next Good evening, question. हाँ गोपाल, I have seen your question. I was going to answer that only. Okay. तो सर गोपाल, did उससे you पहले मेरा एक क्वेश्चन और है सर। हाँ बोल बोल। मैं सर ऑप्शनल को लेके मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है सर, तो मैंने उसको पढ़ रखा है एक बार, और बट मतलब मैंने कवर सारा कर लिया चारों दूसरे मॉड्यूल, एंशिएंट, मेडिवल वाले, वर्ल्ड और मॉडर्न, बट नोट्स मेकिंग को लेके उसमें थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो कोचिंग वाले नोट्स अवेलेबल है वो सफिशिएंट नहीं है क्वालिटी आंसर करने के लिए, तो वो खुद के बनाए। तो लेकिन कुछ टॉपर्स ने ना पहले से बना के रखे हैं, जैसे उपिंदर सिंह है, उसके अच्छे नोट्स बना के रखे हैं, तो क्या उनको रेफर कर सकते हैं या फिर खुद को दोबारा से बनाने जाए? मतलब Am I audible to others? Yes. Hello. Yes, sir. Yes. हेलो। Yes, yes. Sorry, I lost a connection in between. Could you please repeat your question, Gopal? Okay, sir. Sir, my question is related to my optional. My optional is history, and I have read my optional once, fully completed, but I have not made my self notes. My question is that there are notes made by the toppers of the standard books like Upinder Singh for Ancient India and Satish Chandra and Norman Lu. So I can refer to those notes because history, it is a very vast, and if I will go for making notes for every subtopic, then it will consume a lot of time, and probably I will not be able to make the notes of all the 4 modules of the paper. So can I refer Okay, fine. to those I got toppers notes? I got your question. Okay, for the notes making part, a general directions to all of you. Like notes I make for myself. It doesn't matter if someone can understand or not. Second thing, when I make notes, I will decipher these quotes. But I'm saying, don't you worry. Just listen for the timing. Second, when I make notes, I do not want to mention those topics in my notes which I easily remember. Okay. Third, if I'm mentioning each and every topic, then it is not notes. It is a kind of another book from a book. Okay. So in the crux, how to make notes, first you should understand your notes. It is not necessarily कि तुम किसी और का पढ़ो. Second, note should be your. अगर आपको लगता है किसी और के टॉपर के नोट्स से आपके आंसर्स, मतलब उसके नोट्स पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हाँ इससे मैं आंसर कर लूंगा, वेल एंड गुड, मतलब आपको वो समझ में आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, किसी टॉपर ने किसी टॉपिक पे मान लिया आपको दिख ही रहा है कि इसने 3 पॉइंट लिखे हैं या 4 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि कम से कम 5-7 पॉइंट तो लिखे जाएंगे या 10 पॉइंट लिखे जाएंगे. इट मीन्स उसने सिर्फ वो 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं जो उसे याद नहीं रहते. तो अगर आप सिर्फ उन 3 पॉइंट्स के भरोसे बैठ गए हो, इट इज नॉट राइट थिंग. तो पहले आप अपना एरिया, और आप कह रहे हो 4 यूनिट होते हैं, 5 यूनिट होते हैं, वट एवर इट इज, सब टॉपिक्स एंड ऑल. हर टॉपिक का तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती. कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते होंगे ना, देखते ही जिन्हें अरे यार ये तो पता है, हाँ चलो कोई बात नहीं. तो उस जो क्वाइट ऑब्वियस है बट ऑब्वियस टॉपिक्स है, उनको नोट्स की हमें जरूरत नहीं है. वी कैन अवॉइड इट. ओके, नोट्स जहां पे आप वीक पढ़ रहे हैं वो उठा लीजिए, प्रायोरिटाइज कर लीजिए ना किस टाइप के नोट्स. पहला प्रायोरिटी एरिया, अच्छा बार बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसके तो बना ही लो यार, ये पोर्शन से क्वेश्चन आता है. सेकंड प्रायोरिटीज एरिया, ये मुझे याद नहीं रहता तो इसके बना लो. थर्ड प्रायोरिटी एरिया होता है अपना कि ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चलो ये, या इसके किसी नोट्स में अवेलेबल नहीं है, मेरे पास इस टॉपर के नोट्स है, इस फला कोचिंग के नोट्स है, उसमें ये अच्छे से नहीं दे रखा, तो मैं इस टॉपिक का बना लेता हूँ. तो ऐसे करके नोट्स बनाइए. डोंट गो फॉर कि मतलब एक मैं रजिस्टर बनाऊंगा उसके बाद फिर कभी कोई रजिस्टर नहीं बनाऊंगा, इस रजिस्टर में मैं सब कुछ लिख दूंगा. अगेन डोंट गो फॉर द परफेक्शन. इट इज ऑल अबाउट द पैच वर्क स्ट्रेटेजी इन द यूपीएससी. ठीक है, जो जहां से मिला ग्रहण कर लीजिए, ठीक है, और टोटली उस पर रिलाई नहीं करना. होप गोपाल आई एम क्लियर टू यू. गोपाल क्वेश्चन यस क्लियर हुआ? सर. सर तो मतलब हाँ सर, मतलब कि अगर
किसी और के नोट से अपन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है तो उस पे रिलाई कर सकते हैं ना, मतलब अपन PYQ एनालाइज करके सिलेबस का टॉपिक एनालाइज करके अगर अपन को लग रहा है कि अपन कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा मैंने तो आपको उस पे तीन रिलाई चार कर सकते हैं ना। कंडीशंस बता दी हैं ऊपर, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो 110% कर सकते हैं। हाँ सर, तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं हरिकेन का स्टूडेंट हूँ सर, हाँ वो सुन लिया 357 मैंने, वो वाला, मैंने पढ़ लिया, इसमें वो मैंने पढ़ लिया। गोपाल तुमने मेंटरशिप ले रखी है या नहीं? ओके सर ओके। गोपाल मेंटरशिप ले रखी है क्या? तो मेरा प्रोग्राम विदाउट मेंटरशिप है सर। फाइन। तो गोपाल ये कहूंगा कि मैं एक केस स्टडीज के कुछ सेशंस लूंगा अपकमिंग वीक्स में। तो एडमिन टीम से बात कर लेना, बोल देना सर ने बोला था ओपन सेशन में कि आप स्टूडेंट हो तो एक्सेस मिल जाएगा आपको उन सेशंस का, केस स्टडीज वाले का। तो जब भी कंडक्ट होंगे वी विल गिव यू द एक्सेस, ठीक है? ओके सर फाइन फाइन। तो एक थैंक यू क्वेश्चन और था अक्षिता का हम लोगों के पास कि व्हाट टू रेफर इन द ईयरली कंपाइलेशंस। अक्षिता, फॉर योर क्वेश्चन आई विल से दैट सी वेदर इट बी 2022 compilation, 80% or 70% of the topics of or the matter will move copy pasted in 2023 compilation. फैक्ट्स बदल जाएंगे थोड़े से अगर कुछ नई रिपोर्ट्स आ गई, बट वो रिपोर्ट कौन निकालता है, कैसे निकालता है और किस पैरामीटर्स में निकलती है, दैट विल रिमेन द सेम। ओके, सो व्हाटएवर बी दिस, मतलब जो भी दिया हुआ है उसमें 80-70% सेम ही रहता है। तो इफ यू रेफर नाउ, तो दोबारा जब रेफर करोगे 2023 में कोई भी ईयरली कंपाइलेशन, तो यू विल फाइंड योरसेल्फ क्वाइट कंफर्टेबल इन रीडिंग द सेम। सो आई डू सजेस्ट, यस यू कैन डू, डोंट वेट फॉर इट कि 2023 आएगा तब दिया जाएगा। अभी टाइम है और आपकी सिचुएशन अलाउ कर रही है तो पढ़ लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। फाइन। So I have answered almost every chat box question as well, I guess, and those the questions that were with me in the PM. So yeah, one more question of the CSAT. So yeah, I'll suggest that it is not Hindu versus Indian Express debate. Most of the students ask me, but I surely recommend to read Indian Express. Hindu is little bit left biased. उसकी language कई बार काफी tough है. Okay, so reading comprehension and all, if you are thinking, you can get it from the Indian Express. Once you are ready and understanding the context of your editorials, your explained pages in Indian Express, it is quite good as well. So from my side, even Indian Express is quite good. Okay, so that's it. Any more question queries? किसी का कुछ रह गया होगा? Daily answer writing only weekend revision test is Zoom based. साहिल सर, डेली आंसर राइटिंग वाला ये डाउट देख लीजिएगा। Just a second. See, if you want Zoom or Google Meet type of facility for the daily answer writing, one slot would be provided, right? लेकिन daily answer writing के objective ये ही है कि ना, आप पढ़ रहे हो उस दिन में, then आप अगर एक ही टाइम डिसाइड कर लोगे तो शायद आप सिलेबस कंप्लीट ना कर पाओ उस टाइम तक, देन वो शायद दोनों चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। आप पढ़ भी रहे हो, देन आप इस प्रेशर में भी पढ़ रहे हो कि आपको उसी टाइम लिखना भी। तो डेली का मतलब ये है कि ठीक है आप दिन में पढ़े हो, देन यू हैव डिसाइडेड अ टाइम फॉर यू कि ठीक है मैं 7 बजे 8 बजे तक पढ़ लेती हूँ ये वाला अपना सारा दिन का टॉपिक, एंड देन मैं लिखूंगी उसको। अगर आपको वही सुबह 9 बजे मिल जाए टाइम, ठीक है, यू वुड अननेसेसरीली कॉम्प्रोमाइज ऑन योर कंटेंट पार्ट। अगर आपको चाहिए स्लॉट एंड एज मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग, तो वी विल प्रोवाइड वन स्लॉट, बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव से अलग हो रहा है वो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डेली आंसर राइटिंग का ये है कि आप एक दिन में एक टॉपिक प्रिपेयर करें एंड वेन एवर यू फील कंफर्टेबल विद दैट आप उसको लिख लें, राइट? जो कि वीकली रिविजन वाला है उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। आपको एक टाइम दिया जाएगा, उसमें आप 1 घंटा बैठो और 7 क्वेश्चन लिख दो, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव है कि आप टाइमली खत्म कर दे उस टेस्ट को, राइट? सो इफ यू नीड that slot can be provided, as many other students were also saying, but I think वो आप थोड़ा सा cautiously लेना उसको कि whether it is fulfilling your entire purpose or not, right?
रीडिंग एज वेल एज आंसर राइटिंग का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, आई होप यू हैव आंसर्ड। हरिकेन बेस्ड आंसर राइटिंग इज सब्जेक्ट वाइज आंसर राइटिंग। मान लो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 4 दिन दिए गए हैं, आप 3 दिन प्रिपेयर करो, चौथे दिन आप जूम बेस्ड आंसर राइटिंग कर लोगे कि उस टाइम फ्रेम में आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि आपको सफिशिएंट टाइम दे दिया गया है पहले। ठीक है, तो दिस इज हरिकेन बेस्ड जूम बेस्ड आंसर राइटिंग, लाइव आंसर राइटिंग आपको करनी होगी। ठीक है, डेली आंसर राइटिंग इज लाइक कि आप रोज एक एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो एंड वेन एवर यू गेट टाइम आप उस दिन में उसको लिख लोगे। यूजुअली होता क्या है कि आफ्टर 4 डेज 5 डेज 7 डेज 10 डेज ना आपकी खुद एक क्लॉक सेट हो जाती है कि ठीक है मैं शाम तक मैं पढ़ लेती हूँ 7-8 बजे तक, देन 8 से 9 में लिख लेती हूँ। राइट, बट क्या होता है कभी कभी यू मिस आउट ऑन दैट थिंग। मान लो कोई टॉपिक बड़ा है तो शायद आप 10 से 11 लिख लो, राइट, या फिर शायद कोई टॉपिक आपको जल्दी होगा तो हो सकता है आप 5 से 6 लिख लो। तो डेली आंसर राइटिंग इज मोर प्रोवाइडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू यू डेली, while hurricane answer writing is providing you enough gaps, but जिस दिन वो लिखना है फिर वो उस दिन वो लिखना है, राइट। बट यस, डेली में अगर आपको जूम या फिर गूगल मीट टाइप कुछ चाहिए फैसिलिटी तो दैट कैन बी प्रोवाइडेड, वो इशू नहीं है। बट वो यही है कि वो एक ही स्लॉट होगा, फिर आपको उसी स्लॉट में आना पड़ेगा। Fine. So I guess most of the question or all of the questions have been answered from our side. Sahil sir, you can stop the recording. ओके